webinar on different issues in tax audit. On this subject, our elder brother, very learned, honorable CA Rajiv Jain ji with us. I welcome you, sir. I also welcome Anand Dua ji on panelist and all the attendees on behalf of Study Circle. Rajiv ji is not a new on this study circle, but still my duty to introduce him very briefly. Rajiv ji is a BCom honors, law graduate, qualified chartered accountant in 1991. He is expert in direct taxes, pleaded income tax appeal at Income Tax Appellate Tribunal, consultants in the field of income tax finance, management and audit. He has been adjudged and awarded as best speaker of NIRC by NIRC of ICI. He has already delivered more than hundreds of informative lecture on finance bill, income tax, including appearance on television. He also authored various articles published in various professional magazines and newspapers. He is a member of ITAT Bar Association New Delhi. He is a senior partner of Messrs. SSAR and Associate, having office at Ansari Road, New Delhi. This is the brief profile of today's speaker. I once again welcome Jain Saab and request to kindly deliberate on this subject. Over to you, sir. Rajesh Agarwal ji, convener of Pusa Road CP Study Circle, my very good learned friend, CA Anand Dua ji, my co-panelist for today's webinar, distinguished fellow professional colleagues, ladies and gentlemen who have joined this program or who may be later watching this program on YouTube. First of all, I convey my thanks to the entire team of Pusa Road CP Study Circle for giving me another opportunity to come here amongst all of you. And today's topic is issues in tax audit. And my friends, I have spoken so much about tax audit since last few years. So sometimes whenever there is a call that I am required to speak on tax audit, I become nervous because whatever little knowledge I have already shared with all of you learned people, and all of us are conducting tax audit since the beginning of our practices. तो सब लोगों को टैक्स ऑडिट नींद में भी करना आता है. तो जब भी कोई कॉल आती है तो मुझे सोचना पड़ता है कि आज मुझे क्या नया बताना पड़ेगा और नई चीजें मैं कहाँ से लाऊंगा. और आप सब लोग एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट लोगों के बीच में जाना है, तो उसी पुरानी नॉलेज को रिपीट करना, it will not serve any purpose or it will not also justify with the time and opportunity created by study circle. तो लेकिन फिर भी वट एवर लिटिल और पिछले सालों में जो बदलाव हुए, इस साल में जो बदलाव हुए, वी हैव ऑल गॉन थ्रू इस कोविड पीरियड. और कोविड पीरियड में एक मेंटल टॉर्चर से निकले, दूसरे मेंटल टॉर्चर में आके फंस गए. एक मेंटल टॉर्चर निकला, घर पे फंसे हुए थे, बीमारी से फंसे हुए थे, वहां से निकले तो अब इनकम टैक्स की वेबसाइट के टॉर्चर में आके फंस गए ना. वो कहते हैं कि वो पुरानी कहावत है कि वो ऐसा कुछ गले में फंस गया, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, ना तो खाया जा रहा है, ना हजम हो रहा है, ना डाइजेस्ट किया जा रहा है. तो नोबडी इज एबल टू डू एनीथिंग. और हम सब लोग जो है ना सुबह ऑफिस आते हैं कि काम करेंगे, आज अपने लिए कोई टारगेट लेकर आते हैं और काम करना शुरू करते हैं और शाम को बिना कुछ काम करे टाइम वेस्ट करके और अपने घर चले जाते हैं. और बिकॉज द जॉब हैज नॉट बीन अकम्प्लिश्ड, काम कुछ पूरा नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है वो क्लाइंट से फीस भी नहीं मांग पा रहे. तो एक टॉर्चर में से निकले थे कोविड के और दूसरी टॉर्चर में इनकम टैक्स की फाइलिंग पोर्टल के टॉर्चर में आके फंस गए हैं. रोज सुबह आते ही पोर्टल को लॉगिन करते हैं, पोर्टल लॉगिन होता नहीं है. खैर, लेकिन चलो अच्छी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ने कहा कि 15 सितंबर तक अब आप रिलैक्स करो, आपको कोई जल्दी नहीं है. तो 15 सितंबर तक तो उन्होंने बता दिया कि कुछ नहीं होगा, सो डोंट वरी. तो आप इतना ज्यादा पैनिक ना करें. तो जिसको कोई छुट्टी बितानी हो, कहीं घूम के आना हो, तो आप लोग घुमाएं. आनंद जी, बात ऐसे नहीं बनेगी, अपना वीडियो बंद करना अलाउड नहीं है सर. आप फोन सुन लो, बात आप अपने आप को म्यूट करके लेकिन वीडियो बंद करना अलाउड नहीं है सर. क्योंकि क्या होता है कि बिना ऑडियंस के सामने ना एक्चुअली में बोलने थोड़ी सी बात बनती नहीं है. तो ऐसा लगता है कि एक बंद स्क्रीन के सामने आप बोले जा रहे हो और नोबडी इज. एक्चुअली में हम लोगों को आदत है वो सेमिनार हॉल के अंदर करने की,
जब ऑडियंस के साथ आप मुखातिब होते हो और ऑडियंस के साथ आपका आई कांटेक्ट होता है एंड यू आर वेरी एबल टू अप्रिशिएट कि ऑडियंस को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अकॉर्डिंगली आप अपने वर्ड्स को और अपने टॉपिक को चेंज कर लेते हैं, राइट। अब इस मशीन के सामने बैठ के कई बार पता नहीं चलता लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जितने भी लोग मेंबर्स को अटेंड कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू रिमेन एक्टिव ऑन चैट बॉक्स। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जितने भी आपके टैक्स ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप सारे चैट बॉक्स में डाल दो, एंड आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कोई भी आपका, और जिस समय जो टॉपिक ले रहे होंगे तो वो भी क्वेश्चन में लूंगा, और उसी समय ले लूंगा। तो आप अपने चैट बॉक्स में बिल्कुल क्वेश्चन पूछने में कंजूसी मत करना। और एक बात और, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आए तो डोंट फील कि यार मेरा क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन ना हो। अगर इतनी एक्सपर्ट नॉलेज होने के बावजूद भी आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली आप मेरी बात मान लीजिए कि वो सिली क्वेश्चन नहीं होगा, इट हैज टू बी वर्थवाइल। तो आप अपना क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल भी कोई कंजूसी मत करिएगा, और जो भी आपके टैक्स ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सारे पूछ लीजिएगा। अब टैक्स ऑडिट 1984 से आया, असेसमेंट ईयर 85-86 से हम लोग कर रहे हैं। आई क्वालिफाइड इन 90-91 90, और आर्टिकलशिप में जब मैंने 88 में ज्वाइन किया तब से टैक्स ऑडिट करना शुरू कर दिया था, और तब से लेके हर साल खूब सारे टैक्स ऑडिट करते आ रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता टैक्स ऑडिट में, जो नए क्लॉज होते हैं उनको पढ़ लेते हैं, बाकी तो बस पिछले साल की रिपोर्ट हमारी तैयार है, और उस रिपोर्ट में नए साल की जो इन्फॉर्मेशन है और जो नए साल का वेरिफिकेशन है वो उसमें डाल देते हैं, तो टैक्स ऑडिट तैयार हो जाती है। और जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं, और इतने दिनों से जब हम टैक्स ऑडिट रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट, so nobody has ever pointed out any mistakes in those tax audit report। तो अगर हमसे गलती भी हो गई तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट थी सब बढ़िया थी, हमने अच्छे करे थे, क्योंकि किसी ने कोई गलती तो आज तक निकाली नहीं। राइट। लेकिन फिर भी व्हेन वी हैव गैदर्ड, तो ये हमारा नॉलेज पूल बन गया, और इस नॉलेज पूल में वी विल डिस्कस सम ऑफ द फाइनल पॉइंट्स, और उस फाइनल पॉइंट्स से कुछ अपनी नॉलेज को बढ़ा लेंगे। और हमारे 3 पैनलिस्ट मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर और आ रहे हैं, ललित अग्रवाल जी, नवीन वर्मा जी, मनीष रस्तोगी जी, वेलकम आप सब लोगों को। आप सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम सबको पता है कि फॉर्म कौन सा है। अब ये छोटी छोटी बातें सुनने के लिए तो आप मेरे पास से नहीं आए हो कि फॉर्म नंबर 3C कब लगाना है, फॉर्म नंबर 3C कब लगाना है, फॉर्म नंबर 3C कब लगाना है। ये तो सब लोगों को आता है आप लोगों को, तो ये पूछने के लिए तो आप मुझसे नहीं आए हो, या पहले 8 कॉलम में क्या भरना है 3CD के, ये भी आप सबको आता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय डिस्कशन आई विल ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन सम ऑफ फाइनल पॉइंट्स जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए। और फिर भी जो प्रोसीजरल चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जिसको आपको लगता है कि आपको मुझसे पूछना है, तो मुझसे अगर छूट जाए तो आप क्वेश्चंस में पूछ लीजिएगा। अब ये भी हमें मालूम है कि अगर टैक्स ऑडिट नहीं कराया तो सेक्शन 271 कैपिटल बी में उसकी पेनल्टी लगती है 0.5% और ₹1,50,000 विच एवर इज लोअर। खैर बात उसका नहीं है कि अब इस साल हम सबको पता है कि टैक्स ऑडिट की लिमिट जो है वो 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में झूली, और इस साल से 10 करोड़ हो गई है। तो बाय एंड लार्ज जो इतने सालों से which has remained bread and butter of each of our professionals, वो अब बटर उसमें कुछ कम होता जा रहा है। अब सिर्फ बड़े केसेस में आपको ऑडिट करना रहेगा। बट साइमल्टेनियसली दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन जीएसटी, लेकिन जीएसटी वाले मुझे बताते हैं कि सर 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको 9 भरना पड़ेगा, और 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है किसी एसएससी की तो आपको 9C भरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स का ऑडिट यदि ना भी हो, किसी एसएससी की टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए हो जाए, इवन देन आपको उसको टीडीएस की कंप्लायंस भी चेक करनी पड़ेगी, आपको उसके जीएसटी का भी चेक करना पड़ेगा। और जब आप रिटर्न भर रहे हैं तो बेशक आपको रिपोर्ट नहीं देनी, बट स्टिल यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस। और आपको बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू लिखकर बेशक चाहे ना देना हो, लेकिन कल को फ्यूचर में जब आपको केस कराना पड़ेगा तो यू आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई योरसेल्फ बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। तो आप देख लेंगे कि उनकी सारी कंप्लायंसेस पूरी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि रिपोर्ट देने या ना देने से कोई बहुत लंबा चौड़ा इसमें फर्क पड़ने वाला है। तो मेरी राय में जो थोड़ी बहुत आपकी फीस कम होगी हो, लेकिन सारे वेरिफिकेशन एंड चेक्स एंड बैलेंसेस आपको जरूर करने चाहिए।
अब अपनी बात शुरू करता हूँ, टॉपिक में आगे बढ़े। आपको सबको मालूम होगा कितने टैक्स ऑडिट कर सकते हैं राजेश अग्रवाल जी? आपको सबको मालूम है? आप पैनलिस्ट अपने आप को अगर अपना स्पीकर ऑन भी कर लें तो मुझे कोई इशू नहीं है। आनंद दुआ जी 60 ऑडिट कर सकते हैं। ये किसने बताया सर हम 60 ऑडिट कर सकते हैं? ICI आईसीआई काउंसिल ने हमारी गाइडलाइन दी कि आप 60 ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है सर। अगर कोई 60 से ज्यादा ऑडिट कर दे तो क्या होगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एज पर इनकम टैक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के संविधान में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो। आर्टिकल 19(1)(g जो है वो हमें साफ कहता है कि देखिए कि जो आपको अपना प्रोफेशन करने की, अपनी व्यापार करने की पूरी आजादी है। ठीक है, स्टेट चाहे तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, राइट। तो ये रिस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से तो नहीं आई, किसी कानून के माध्यम से नहीं आई, लेकिन इंस्टीट्यूट की हमारी काउंसिल ने अपनी मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि आप लोगों को 60 टैक्स ऑडिट करने हैं। इससे ज्यादा अगर आप करोगे दैट विल अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी, राइट। अब ये मैटर बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन स्मॉलर एरियाज, जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बड़े क्लाइंटल नहीं होते और जो थोड़ा बहुत जो काम होता है वो बेसिकली टैक्स ऑडिट के माध्यम से आता है। और बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पर आपको पता चलेगा राजेश भाई कि वहाँ पर इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है। कई छोटे शहर ऐसे हैं वहाँ पर इतने सीए ही नहीं है, तो अब एक ही सीए या दो सीए हैं एक शहर के अंदर, और 60 से ज्यादा उसका टैक्स ऑडिट है, और वही उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और वही चला जाएगा। तो वेदर, अब क्वेश्चन ये खड़ा हो गया, वेदर दिस गाइडलाइन ऑफ अवर इंस्टीट्यूट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। तो देश में बहुत सारी जगह इसकी रिट पिटीशन फाइल हो गई, बहुत सारी जगह इसकी रिट पिटीशन फाइल हो गई, बिल्कुल पेंडिंग है अभी। जिन्होंने इसको चैलेंज कर दिया कि देखिए साहब, ये जो गाइडलाइन है इंस्टीट्यूट की, ये जो काउंसिल का डिसीजन है, ये दिस इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है सर। और बहुत सारी कोर्ट ने सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन पीछे जो डेटा आया था कि इंस्टीट्यूट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उसमें ये पता लगा कि 2 चार्ट अकाउंट्स ऐसे थे जिन्होंने 4-4 हजार से ऊपर टैक्स ऑडिट करे। क्या वो भी जस्टिफाइड है? नहीं, मैं किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा सर। मैं एम नॉट सपोर्टिंग एनीबॉडी। असल में ये जो डाटा कलेक्ट हुआ आनंद जी, इसमें देखिए ये भी प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे लोगों ने ना बोगस नाम से भी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की थी। तो ये डाटा आने से कम जो बोगस मोहर लगती थी और जो बोगस सिग्नेचर लग जाते थे लोगों के, उससे तो हमें मुक्ति मिल गई। ठीक है, अब इश्यू हमारा ये खड़ा रह गया कि 60 की लिमिट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है कि नहीं। अब कई कोर्ट के डिसीजन थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फेवर में आ गए, जिन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा कि ये 60 की जो लिमिट है, दिस इज इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ कोर्टों ने कहा कि नहीं जी, इंस्टीट्यूट के पास राइट है, इंस्टीट्यूट विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 13 में वो विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट आता है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अपने मेंबर्स के ऊपर लगा सकता है। तो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ गए। जहां कोर्टों ने कहा कि भाई इंस्टीट्यूट ने ठीक किया है, तो वहां उसके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लग गया। पॉइंट। और जहां कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो वायलेशन है आर्टिकल 19 का, तो वहां का उस स्टेट का प्रोफेशनल बच गया। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी सिचुएशन पूरे देश में हो गई। पर ये कंपनीज एक्ट में भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जी। तो ये पूरे देश में एक अजीब सी हालात पैदा हो गए कि किसी स्टेट के चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो बचाव हो गया, क्योंकि उस स्टेट में जो है ना वो फेवर में डिसीजन आ गया। किसी स्टेट में जो अगेंस्ट आ गया, वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट बेचारा, उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा, राइट। और इसी तरीके से कुछ रिट पिटीशन अभी वेरियस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, जिनके ऊपर अभी डिसीजन होना बाकी है। तो इंस्टीट्यूट ने एक काम किया, नोटवर्दी अच्छा काम किया, कि भाई ये अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आ जाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। अब पता ही नहीं चलेगा, या तो एक तरफ हो जाए कि भाई वायलेशन है या नहीं है, जो भी होना है एक तरफ हो जाए, एक 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 रास्ते को फॉलो कर लेंगे, या तो मान लेंगे कि वायलेशन है या मान लेंगे कि वायलेशन नहीं है। तो एक रास्ते पर चलना है।
तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सारे रिट पिटिशन आप सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर लीजिए, और ये जितनी भी रिट पिटिशन है जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में चल रही है इंडिया में, तो इनका एक कंप्रिहेंसिवली आप इस इशू को सेटल कर दीजिए। तो अब ये 9 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन फाइल हुई थी, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, वो हाई कोर्ट सुने और अभी हम इसमें कोई जजमेंट नहीं देंगे, हम इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रांसफर पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट इसलिए कर लिया कि पहले किसी हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था और अब हाई कोर्ट के कंफ्लिक्टिंग जजमेंट आ गए। तो अब जो बाकी पिटिशन बची है वो कौन सी हाई कोर्ट को फॉलो करेंगे और क्या व्यू लेंगे, उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। तो अब ये पूरा मसला जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सेटल हो जाएगा, और सारे केस अब ये सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं। ICAI वर्सेस शाजी पोलोज इस केस का नाम है, 122taxman.com 134। तो ये सारे जो केसेस हैं, 60 की ऑडिट लिमिट रहेगी कि नहीं रहेगी, अब सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगा, और एक जजमेंट आ जाएगा, कोई कंफ्लिक्टिंग जजमेंट नहीं रहेगा, दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन ईच ऑफ अस। बट स्टिल जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तब तक काउंसिल की गाइडलाइन इज इन फोर्स। तो आप जो है कोई भी ऐसा रिस्क ना लें अपनी जान को कि 60 से ज्यादा ऑडिट करें, और 60 से ज्यादा ऑडिट करें और आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की तलवार लटक जाए, राइट। तो इसका आप ध्यान रखें। लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट आया 44AB में और 92E में भी आया। पहले क्या था कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट थी और इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट थी वो दोनों एक ही थी, ड्यू डेट एक ही थी हमारी। हमें करना क्या था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले लेके और उसको फाइल करना है, और उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है। लास्ट ईयर इसको डीलिंक कर दिया। लास्ट ईयर इनकम टैक्स की रिटर्न को, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को, दोनों को डीलिंक कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप 1 महीने पहले फाइल कर दो। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप 1 महीने पहले फाइल कर दीजिए, जो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है उससे आप 1 महीने पहले अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दीजिए। चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। अब सपोज करिए कि मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न से 1 महीने पहले टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट फाइल करनी है, और टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में मुझे 43B की डिसअलाउंस बतानी है। अब एसएससी के पास डिपॉजिट करने तक का टाइम कब तक का है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि जिस समय आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इट मे बी आउटस्टैंडिंग एट दैट टाइम, जिस समय आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं उस समय आपका 43B का पैसा बाकी है। ठीक है सर। इसी तरीके से आपने टीडीएस किसी का काटना भूल गए, तो आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले आप काट के अगर काट लेते हैं तो आपको 40IA का डिसअलाउंस नहीं होता, 40A का डिसअलाउंस नहीं होता, राइट। अब यहां पर भी एक गैप खड़ा हो गया कि अगर आपने 1 महीने पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी, उस समय तक आपने टीडीएस नहीं काटा था, और जिस समय आपने रिटर्न फाइल करी उससे पहले या तो आपने टीडीएस काट लिया या उनके CSA सर्टिफिकेट ले आया फॉर्म नंबर 26A में। ठीक है सर, दोनों पोजीशन कर सकते हैं ना। तो यानी दोनों सिचुएशन में डिफरेंस पैदा होगा। इसी तरीके से एक क्लॉज नंबर 8A लास्ट ईयर इंसर्ट हुआ था, इस साल उसमें अमेंडमेंट आई है। अब उसमें पूछते हैं कि आप ये जो नया रिजीम ऑफ टैक्सेशन है, पैरेलल जो रिजीम ऑफ जो टैक्स रेट है 115BA, 115BAA, BAB, BAC और BAD की एसएससी ने इसको ऑप्ट तो नहीं किया, और उसे ऑप्ट कब करना है, उसकी ड्यू डेट क्या है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब जिस समय आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल हुई है उससे पहले अपने उसने फॉर्म 10B, 10C, 10D, 10E, 10F फाइल किया है नहीं किया, इट इज नॉट रेलेवेंट। वो तो रिटर्न फाइल करने से पहले उसको फाइल करना है, और आंसर ही आपसे पूछ रहे हैं। व्हाट माय पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में पूछ रहे हैं कि आप इन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, और इनका जो उत्तर है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बदल जाएगा। उस समय उत्तर कुछ और है, जिस समय आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उस समय इसका आंसर कुछ और है।
फिर सेक्शन 143(1) क्लॉज ए और उसका क्लॉज नंबर 4, वो क्या कहता है प्रोसेसिंग में क्या करेंगे 143(1) की प्रोसेसिंग में, कि जो आपकी इनकंसिस्टेंसी होगी इन द रिटर्न ऑफ इनकम एंड द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उसकी 143(1) में जाके एडिशन कर देंगे। आपने यहां पर टीडीएस नहीं काटा, आपने अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उसको डिसअलाउ कर दिया। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले एसएससी के पास या तो फॉर्म नंबर 26A आ गया या उसने टीडीएस जमा करा दिया, तो देन ही इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन। अब उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में जाकर डिडक्शन क्लेम कर दी। अब होगा क्या, 143(1) में दोनों इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगी, दोनों इंफॉर्मेशन मैच नहीं करेगी। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपने डिसअलाउंस कर दिया है और इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर आपकी डिसअलाउंस नहीं है। तो अब ये मशीन क्या करेगी, सीपीसी की मशीन क्या करेगी, ये आपकी एडिशन कर देगी। ये आपकी एडिशन कर देगी और आपकी एडिशन करके आपकी डिमांड निकल के आ जाएगी। तो फिर आप क्या करें, अब उसका 154 कराएंगे। फिर आप क्या करेंगे, उसका 154 कराएंगे। देखिए साहब हमने तो अब हमारे लिए ये 1 महीने के कारण हमारा काम बढ़ गया। अभी हमारा काम बढ़ गया एसएससी के लिए। अब इन्होंने एक काम और बढ़ा दिया, रूल 6G को अमेंड कर दिया, उसके अंदर एक सब रूल 3 डाल दिया। रूल 6G को अमेंड करके उसमें एक सब रूल 3 डाल दिया। अब वो क्या कहते हैं कि आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी और उसके बाद कोई 40 AI की या 40 IA की कोई टीडीएस जमा हो गया या उसकी डिसअलाउंस नहीं होनी, या 43B की पेमेंट हो गई, अब उसकी डिसअलाउंस नहीं होनी, राइट। तब आप क्या करिए, आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करा दीजिए ताकि आपकी 143(1) की प्रोसेसिंग में आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। गॉट माय पॉइंट? बात समझ में आ गई? और सर ऐसे केस में डिन का क्या करेंगे हम, जो इंस्टीट्यूट ने डिन की बात कही है? डिन की बात कर रहे हो आप, जो अपने को यूडीआईएन की बात कर रहे हैं? हाँ, यूडिन नंबर। रिवाइज रिपोर्ट का यूडीआईएन तो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो क्या कहते हैं कि रूल 6G में अब सब रूल 3 इंसर्ट कर दिया कि जिस सिचुएशन में आपकी सिचुएशन में बदलाव आ जाए, तो अब हमारे लिए काम बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देंगे, उसमें डिसअलाउंस लिखेंगे, ठीक है, और डिसअलाउंस लिखने के बाद फिर हम उसको एक और रिवाइज रिपोर्ट देंगे। तो ये अब हमारे लिए काम बढ़ गया, राइट। अब इसका दूसरा उपाय क्या हो सकता है, देखिए फॉर्म नंबर 3CA में क्लॉज नंबर 3 में आपको क्वालिफिकेशन करनी होती है, फॉर्म नंबर 3CB में क्लॉज नंबर 5 में आपको क्वालिफिकेशन करनी है। तो अब क्या किया एज एन ऑडिटर, अब मैं एक बात समझने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या करूं, इसका रास्ता कैसे निकालूं कि मुझे बार बार रिवाइज रिपोर्ट ना देनी पड़े। जहां रेस्पेक्टिव उसका कॉलम है, मान लिया 43B की डिसअलाउंस है और मुझे पर्टिकुलर कॉलम नंबर 21 में मुझे जाकर उसको रिपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, क्लॉज नंबर 5 में आऊं फॉर्म नंबर 3CB के और वहां पे जाके क्वालिफिकेशन डाल दूं। वहां पर तो उसको रिपोर्ट ना करूं और यहाँ लिख दूं कि सो मच अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ GST outstanding as on the date of our report, and the SSC has assured that this amount will be paid before filing of the return of income, right? तो मेरा एज एन ऑडिटर मेरा कंप्लायंस पूरा हो जाएगा, मैंने असेसिंग ऑफिसर को अपनी बात पहुंचा दी और मशीन की प्रोसेसिंग से मैं बच जाऊंगा। बात समझ में आ गई? और रिवाइज रिपोर्ट देने के झंझट से भी बच जाऊंगा। तो ये रास्ता ऐसी सिचुएशन में बना सकते हैं। ये जो 1 महीने का जो टाइम लैग है बिटवीन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है सर। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो पूछते रहिएगा। अब ड्यू डेट्स ऑफ इस साल की ड्यू डेट क्या है, अभी तक तो कुछ पोर्टल चल नहीं रहा, अभी तक तो कुछ काम हो नहीं रहा। अब बहुत से लोगों को फोन आया कि साहब क्या करें, क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकते हैं? द आंसर इज यस, लोड नाउ, डजंट मैटर, इट्स नॉट माय फॉल्ट। आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाइए, वर्ड में उसका प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है, उस पर डेट डालिए, यूडीआई नंबर डालिए
और आप अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हाँ। साइन करके दे सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है टैक्स ऑडिट साइन करने में। ठीक है, जिस समय पोर्टल चालू होगा उस समय उसको पंच करके अपलोड कर देंगे। डेट ऑफ साइनिंग भी वही रहेगी, यूडीआई नंबर भी वही रहेगा, और जो इन्फॉर्मेशन हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है वो इन्फॉर्मेशन हम पोर्टल पे जाके डाटा पंच कर देंगे। ठीक है सर, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अब क्या किया, ड्यू डेट हमारी इस साल की सारी बढ़ गई है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट थी पहले 30 सितंबर। ठीक है सर, जो 30 सितंबर की टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट की डेट थी वो अब बढ़ा के कर दिया सर 31 अक्टूबर 2021। और यह है सर्कुलर नंबर 9/2021 डेटेड 20 मई 2021। आप नोट करना चाहें, सर्कुलर नंबर 9/2021 डेटेड 20 मई 2021। जो ड्यू डेट थी हमारी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न की, इसको बढ़ा के कर दिया 30 सितंबर। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बनाइए, तैयार करिए। 26 सबके आ ही रहे हैं, 26 में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, ऑलमोस्ट सबके अपलोड हो गए। तो आप अपने रिटर्न फाइनल करते जाइए। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर में आपके पास अगर फॉर्म आ गया है तो भर के रख लीजिए, वरना एक्सेल में बनाइए, प्रिंट आउट निकालिए और संभाल के रख लीजिए। जब पोर्टल खुलेगा तो उसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देंगे। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट थी 30 सितंबर, वो अब हो गई है 31 अक्टूबर। ये सब इसी सर्कुलर से डेट बढ़ी है। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में जो पहले 31 अक्टूबर थी, नाउ इट इज 30 नवंबर, इसकी 30 नवंबर होगी। बिलेटेड रिटर्न के केस में, कंपनी के केस में या ऑडिट केसेस में, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है जो पहले 31 अक्टूबर 2021 थी, इट इज नाउ एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 2021। और ट्रांसफर प्राइसिंग की जो इनकम टैक्स रिटर्न है ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, दैट ड्यू डेट इज 31 दिसंबर 2021। और आपको याद होगा 139(5) में जो बिलेटेड रिटर्न, पहले वो पिछले साल तक आप 31 मार्च तक फाइल कर सकते थे, इस साल से वो डेट हमारी रिड्यूस हो गई थी अप टू 31 दिसंबर 2021। ठीक है सर, इस साल से अब इस नोटिफिकेशन से इन्होंने उस 31 दिसंबर की डेट को बढ़ा के कर दिया 31 जनवरी। यानी कि जो आपकी बिलेटेड रिटर्न है वो अब आपकी 31 जनवरी 2022 तक फाइल हो सकती है। ठीक है सर, ड्यू डेट आपको क्लियर समझ में आ गई सर। टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट हो गई है 31 अक्टूबर। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में आपकी ड्यू डेट हो गई है रिपोर्ट की 30 नवंबर। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज 30 नवंबर। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज 31 दिसंबर। और 139(5) में जो बिलेटेड रिटर्न है उसकी आपकी ड्यू डेट हो गई आप 31 जनवरी 2022। और ये है सर्कुलर नंबर 9/2021 डेटेड 20 मई 2021। फॉर्म नंबर 3CD में दो क्लॉज आए थे 30C एंड 44, एक गार के लिए और एक जीएसटी की रिपोर्टिंग के लिए। और ये हर साल एक्सटेंड कर देते हैं कि चलो जी अगले साल से एप्लीकेबल करेंगे। तो इस साल दोबारा से इसको एक्सटेंड कर दिया है, अब ये अगले साल से एप्लीकेबल होगा। इसका सर्कुलर नंबर आया है 5 डेटेड 25 मार्च 2021। सर्कुलर नंबर 5 डेटेड 25 मार्च 2021। तो then CBDT has deferred applicability of clause number 30C and clause number 44 of form number 3CD. फॉर्म नंबर 3CD में छोटे छोटे से अमेंडमेंट हो गए। क्लॉज नंबर 8 1 से लेके 8 तक जो फॉर्म 3CD के क्लॉज होते हैं, आपको सबको पता है, नाम लिखना है, असेसमेंट ईयर लिखना है, ठीक है ना, जीएसटी नंबर लिखने हैं। क्लॉज नंबर 8A लास्ट ईयर इंसर्ट हुआ था। Whether the SSC has exercised any option for the new regime of taxation, 115BA की कोई उसने ऑप्शन एक्सरसाइज की है, 115BAA की कोई ऑप्शन एक्सरसाइज की है, 115BAB की कोई
ऑप्शन एक्सरसाइज की है, ठीक है सर। तो इस साल उसमें 2 सेक्शन और जुड़ गए हैं। आपको पता है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए नया रिजीम आ गया है, नया फ्रेश रेट ऑफ टैक्सेशन आ गया है। आप सीधे सीधे 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर हैं तो 5% टैक्स दीजिए, 5 लाख से 7.5 लाख है तो 7.5% दीजिए, 7.5 से 10 लाख है तो 10% दीजिए, 10 लाख से 12.5 लाख है तो 12.5% दीजिए, 12.5 लाख से इस तरीके से 15 लाख से ऊपर जाके आपका 15% टैक्स। तो ये नया रिजीम आ गया है। इसमें कंडीशन क्या है कि आपको चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये इसका रिजीम है, इंडिविजुअल के लिए नया रिजीम आ गया। तो ये सेक्शन इसमें जोड़ दिया है कि आपका कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और इफ दैट इंडिविजुअल और एचयूएफ हैज अवेल्ड बेनिफिट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी और उन्होंने बीएसी लेने के लिए फॉर्म नंबर 10(1)(e) अगर फाइल कर दिया है आपकी ऑडिट रिपोर्ट से पहले, ठीक है सर, तब आपको यहाँ पर उसका आंसर भरना है। अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट से पहले उन्होंने दाखिल नहीं किया, उन्होंने डिसाइड नहीं किया, तब आपको इसमें आंसर क्या भरना है? तब आप क्या भरेंगे? एसएससी के पास ऑप्शन है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। इज नॉट बाउंड इन एनी मैनर कि वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे। उसके पास ऑप्शन है कि जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तब तक वो जाके फॉर्म नंबर 10(1)(e) फाइल कर सकता है, ठीक है सर। अब ये जो 115 बीए है ये एप्लीकेबल हुआ था असेसमेंट ईयर 17-18 से। तो जिसने 115 बीए में गया होगा तो उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली होगी 17-18 असेसमेंट ईयर में, ठीक है सर। 115 BAA ये एप्लीकेबल हुआ था असेसमेंट ईयर 20-21 से। BAA में टैक्स लगता था 22%, 10% सरचार्ज और 4% सेस। इफेक्टिव रेट हो गया 25.168%, ठीक है सर। लास्ट ईयर हमने बहुत सारी कंपनियों में इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया था और ये जो ऑप्शन थी ये वन टाइम एक्सरसाइज थी। अगर लास्ट ईयर आपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है तो नेचुरली आपका आंसर इस साल यस आएगा, ठीक है ना सर। और अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक उसने एक्सरसाइज नहीं किया है तब क्या आएगा आंसर? नो आएगा। अब हमें नहीं पता, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना है। अब यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते कि जी असेसिंग ऑफिसर ने भी डिसाइड नहीं किया है। हालांकि अगर एसएससी हमें ये लिख कर दे कि भाई वी हैव नॉट डिसाइडेड एंड वी विल डिसाइड इट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, देन दैट मे बी अनदर आंसर। लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमें ये आंसर भरने की ऑप्शन देगा कि नहीं देगा, दैट वी हैव टू सी। क्योंकि मैं भरता नहीं हूँ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपने हाथ से, तो आई एम नॉट श्योर कि आंसर उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 115 BAB में ये नई कंपनियों के लिए है विच आर सेटअप आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 और इसमें जो रेट ऑफ टैक्सेशन है 15%, 10% सरचार्ज और सेस और जो इफेक्टिव रेट आता है दैट इज 17.16%। और ये भी एप्लीकेबल हो गया था लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 20-21 से। तो अगर 20-21 से में आपके एसएससी ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली है, ठीक है सर, तो ये आप वापसी नहीं ले सकते, इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। वंस यू हैव एक्सरसाइज दिस ऑप्शन दैट इज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर and also for all subsequent previous year and assessment years, right? तो यानी कि अगर पिछले साल में आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर चुके हो तो आप यहाँ पर इसको यस लिख देंगे, और अभी तक आपके एसएससी ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो आप इसको नो लिख देंगे। इन द सेम मैनर 115 बीएससी के केस में आपका इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, नए रिजीम में जाना चाहते हैं, बाकी मेरी एडवाइस ये होगी कि आप दोनों कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बना के ले लीजिए। बिजनेस इनकम वाले के लिए ये जो 115 बीएससी है यहाँ पर 2 अलग अलग ट्रीटमेंट है। नॉन बिजनेस इनकम वालों के लिए ट्रीटमेंट अलग है और बिजनेस इनकम वालों के लिए ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप नॉन बिजनेस इनकम वाले हैं तो नॉन बिजनेस इनकम के केस में आप हर साल इस ऑप्शन को चूज करना है। आप हर साल के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, इसमें नए रिजीम में जा सकते हो या नहीं जा सकते। आप हर साल कंपेयर कर लीजिए मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, तो जिस साल आपको कौन सा बेनिफिशियल हो आप वो रिजीम ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन बिजनेस के केस में ऐसा नहीं। बिजनेस के केस में आपने एक बार इस रिजीम को ऑप्ट कर लिया
देन इट विल बी परमानेंट, आपका उस साल के लिए और हर सब्सिक्वेंट ईयर के लिए ये आपकी ऑप्शन प्रिवेल करेगी और आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप कंपेयर कर लीजिए, और जब भी अगर आप अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये लिख रहे हैं कि एसएससी ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, तो आप उसका फॉर्म नंबर 10(1)(f) जो है 1E जो है वो आप उससे अपलोड करवा दीजिए। ठीक है सर, और उसके बेस पे आप अपनी रिपोर्ट करिएगा। अगर एसएससी अपना फॉर्म फाइल कर देता है ऑप्शन एक्सरसाइज करने का, तब आपको इसका आंसर यस लिखना है, अदरवाइज आपको इसका आंसर नो लिखना है। वो अपनी रिटर्न के टाइम पे देख लेगा कि मुझे क्या करना है। राइट, आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले उसने यदि ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, तब आपको यस लिखना है, अदरवाइज आपको नो लिखना है। रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे वो देख ले। तो मेरा ये कहना है इसमें कि अगर अमाउंट ऑफ टैक्स का जो डिफरेंस है वो सब्सटेंशियल नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट से, परमानेंट कमिटमेंट से बचना चाहिए। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में क्या होगा हमें नहीं मालूम। तो हम कोई भी परमानेंट कमिटमेंट, अगर कोई छोटा अमाउंट है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वी शुड वेट, और हमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। दैट विल बी इन द बेनिफिट ऑफ द एसएससी। ठीक है सर, एक क्लॉज नंबर 17 जहां पर हम 43CA और सेक्शन 50C की रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है सर, वो इस साल अमेंड हुआ है। इस साल आपको पता होगा कि सेक्शन 43CA में और 50C में पहले 5% की लीवरेज अलाउ होती थी। ठीक है सर, आपका जो कंसिडरेशन है और स्टैम्प वैल्यू अगर उसके 105% से ज्यादा है, तब स्टैम्प वैल्यू सब्स्टिट्यूट होता था। अदरवाइज सपोज आपकी कंसिडरेशन 100 रुपीज है एंड सर्कल रेट इज 105 या उससे कम, देन योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही आपकी कंसिडरेशन मानी जाएगी, स्टैम्प वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेगी। इस असेसमेंट ईयर 21-22 से इसमें बदलाव आ गया, और यहाँ पर ये जो लीवरेज है नाउ इट इज 110%। ये 110% की लीवरेज हो गई है। और इसमें एक और चेंज आया है, एक डेट है 12 जून 2021 से लेकर, और नवंबर 2021 से लेकर, मुझे डेट ध्यान से उतर गई है, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। तो अगर कोई बिल्डर है और 43CA के लिए, 50C के लिए नहीं है, तो अगर उस डेट में अगर कोई बिल्डर अगर कोई रेजिडेंशियल यूनिट अलॉट करता है, तो ये जो लीवरेज है दैट विल बी 20%। ये 20% हो जाएगी, 10% से भी, प्रोवाइडेड की जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल यूनिट होना चाहिए, और साथ में उसकी जो कंसिडरेशन है शुड बी लेस देन ₹2 करोड़। एक मिनट में इसकी आपको वो और बता दूं, साथ में इसकी कट ऑफ डेट क्या है, उस डेट के बीच में अगर ट्रांसफर हुआ है तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ये है सर 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो ये भी आपका 43CA के लिए। तो 43CA में थोड़ी सी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो उसके लिए क्लॉज नंबर 17 में थोड़ा सा अमेंडमेंट है, तो फॉर्म नंबर 3CT को आप देख लीजिए। और 115 BAC और 115 BAD, इन दोनों के लिए दो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट हैं क्लॉज नंबर 18 में, जहां आप डेप्रिसिएशन की रिपोर्टिंग करते हैं, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को जो फॉरगो करेंगे आप, उसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। इन द सेम मैनर क्लॉज नंबर 32 में, जहां ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन और लॉसेज आते हैं, वहां जहां उस एडिशनल डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी, तो वो आपको क्लॉज नंबर 32 में उसके लिए सेपरेट कॉलम ऐड कर दिया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एज वी ऑल नो कि इस साल से खत्म हो गया है। इस साल कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है। ठीक है सर, तो क्या कटता है आपका, TDS कट के आता है, तो 115 को खत्म हो गया। तो क्लॉज नंबर 36 जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की रिपोर्टिंग करता था, क्लॉज नंबर 36 जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की रिपोर्टिंग करता था, वो क्लॉज अब फॉर्म नंबर 3CT में से हटा दिया। अब आ जाते हैं सर सेक्शन 44AB पर।
सेक्शन 44AB में, सेक्शन 44AB में लास्ट ईयर तक लिखी थी कि आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है बिजनेस के केस में, 1 करोड़ रुपए। और इन केस योर केस फॉल्स विद इन द प्रोवाइजो कि आपकी जो कैश रिसीट्स हैं that does not exceed 5% of your total receipts of the SSC, or your cash payments does not exceed 5% of the total payments of the SSC. अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तब आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट बिजनेस के केस में 1 करोड़ से बढ़ के हो जाएगी 5 करोड़। ये लास्ट ईयर का प्रोविजन था, ये लास्ट ईयर का प्रोविजन था। इस साल के केस में उन्होंने क्या कर दिया, इसको 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के कर दिया 10 करोड़। यानी कि अगर आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि आपकी जो कैश रिसीट्स है, आपकी जो कैश रिसीट्स है, इट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ योर टोटल रिसीट्स। यानी कि हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, कैश रिसीट, और डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन द सेम मैनर पेमेंट्स को जब हम देखेंगे, कैश पेमेंट्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर ये दोनों का फार्मूला 5% से नीचे रहता है तब मेरी टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। ठीक है सर, ये इस साल से अमेंडमेंट था। हमने देखा कि जो क्लॉज ए है जहां बिजनेस की टर्नओवर लिखी है 1 करोड़ रुपए, when your sales turnover or gross receipts exceed or exceeds rupees 1 करोड़, उसके नीचे एक प्रोवाइजो आया। अब इस साल से एक प्रोवाइजो और आ गया। अभी तक जो हमने पढ़ा पुराना प्रोवाइजो पढ़ा, अब एक प्रोवाइजो इसमें और ऐड करते हैं। अब उस प्रोवाइजो में इन्होंने कहा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेमेंट और रिसीट एज द केस में बी बाय ए चेक drawn on a bank or by a bank draft which is not account payee shall be deemed to be payment or receipt as the case may be in cash। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई पेमेंट रिसीव हुई बाय चेक और ड्राफ्ट which was not an account payee चेक और ड्राफ्ट, या आपने किसी को पेमेंट की और जो आपने चेक या ड्राफ्ट दिया that is not account payee। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी जो भी रिसीट और पेमेंट होगी दैट विल बी डीम्ड टू बी कैश। बहुत बार राजेश भाई हम दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लॉ में देखते हैं, एक तो डीमिंग फिक्शन क्रिएट होती है, डीम्ड क्या होता है, दूसरा होता है प्रिजम्पशन, है ना। अब 44AD में जब हम पढ़ते हैं दैट इन केस ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस, eligible SSC engaged in eligible business, his net profit shall be presumed to be rupees 8% or 6%, right? तो वो है presumption। यहां पर कहते हैं deemed to be, क्योंकि हमें पता है कि ये बियर चेक से पेमेंट करी है, हमें पता है ये डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करी है, चाहे वो एडको का है, राइट, कैश नहीं है ये, वो कह लेकिन इसको हम कैश मान लेंगे। तो डीमिंग फिक्शन में और प्रिजम्पशन में थोड़ा सा फर्क समझ। डीमिंग फिक्शन में वी नो दैट व्हाटएवर इज डीम्ड इज फॉल्स। जिस चीज को मान रहे हैं वो झूठ है, ये हमें पहले से पता है। डीमिंग फिक्शन के अंदर हमें पता है इस बात का कि जो हम फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं लॉ के अंदर, ये झूठ है और झूठ को हम सच की तरह सच मानकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये होता है डीमिंग फिक्शन। यहाँ पे हमें मालूम है कि जो पेमेंट है बाय चेक आई है, बाय ड्राफ्ट आई है, लेकिन हमने एक फिक्शन क्रिएट कर दिया दैट विल बी डीम्ड टू बी कैश। ठीक है, यानी एक झूठ है जिसको हमें पहले से पता है कि ये झूठ है, हमने उसका कलर चेंज कर दिया, दिस इज डीमिंग फिक्शन। और प्रिजम्पशन क्या होती है, प्रिजम्पशन इज पार्टली ट्रू। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमें धुआं दिखा, व्हेन देयर इज अ स्मोक वी प्रिज्यूम दैट देयर मस्ट बी फायर समवेयर। जब हम धुआं देख रहे हैं तो हमें अंदाजा कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तो इट इज पार्टली ट्रू। जब हमने कहा कि आपके बिजनेस की इनकम 44AD के अंदर हम 8% या 6% प्रिज्यूम कर लेंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज पार्टली ट्रू। तो प्रिजम्पशन हमेशा ट्रुथ के केस में होती है,
और डीमिंग फिक्शन जब हम यूज करते हैं तो हम एक झूठ को सच बनाकर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर इन्होंने एक सेकंड प्रोवाइजो ऐड कर दिया कि अगर आपके पास कोई बियरर चेक से पेमेंट आ गई, एंडको के चेक से पेमेंट आ गई, एंडको के ड्राफ्ट से पेमेंट आ गई, या आपने पेमेंट कर दी विदाउट अकाउंट पे चेक्स, तो उसको हम कैश मान लेते हैं। अब प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप ऑडिट करने जाते हो, कैन एन ऑडिटर वेरीफाई दिस ट्रांजेक्शन कि आपने एसएससी में पेमेंट कैसे करी थी, उसने बियरर चेक दिया था कि एंडको का चेक दिया था, क्या उसका कोई ट्रेल है हमारे पास? क्या क्लाइंट उसकी कोई ट्रेल हमें दिखा सकता है? डू वी हैव एनी मैकेनिज्म व्हाटसोएवर कि हम इस बात को वेरीफाई कर सकें कि आप किस चीज की रिपोर्टिंग हमसे चाह रहे हैं? जब हम 269 एसएस की बात करते हैं, 269 टी की बात करते हैं, 269 एसटी की बात करते हैं, और जब उसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां भी हम डिस्क्लेमर देते हैं that we have obtained a certificate from the SSC that all the payments, all the loans are received through an account pay check or a draft, right? And all the payments have been made through account pay checks and drafts only. तो ये सर्टिफिकेट अब हमें यहां पर भी लेना पड़ेगा। We are not in a position to verify this. इसका किसी प्रकार का कोई ऑडिट ट्रेल हो ही नहीं सकता, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है सर। तो हमें अपने क्लाइंट से एक और सर्टिफिकेट हमें लेना पड़ेगा कि साहब हमारे पास या तो बता दे हमें कि कितने बियरर चेक आए थे, कितने अकाउंट पे चेक नहीं थे, या तो उसका कोई ट्रेल हमें दे देगा वो। ठीक है, अगर वो ट्रेल नहीं देगा तो वो हमें एक सर्टिफिकेट देगा और उस सर्टिफिकेट के बेस पे हम अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन खड़ा हो गया। इन्होंने कहा कि अगर बियरर चेक से आपने पेमेंट दे ली जो चेक अकाउंट पे ही नहीं था, दैट विल बी डीम्ड टू बी कैश। अब हमने लास्ट ईयर मैंने लेक्चर में एक बात की थी कि राजेश जी से मुझे पैसे लेने हैं और राजेश जी ने मुझे पैसे कैश देने की बजाय मेरे बैंक में जमा करा दिए, बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। तो मैं क्या इस पेमेंट को अपनी कैश बुक में एंट्री कर सकता हूँ क्या? तो कैश ही माना जाएगा सर डीम्ड टू बी कैश। मैंने सर डीम्ड कहाँ लिखा है? डीम्ड फिक्शन तो कोई क्रिएट करेगा तो होगा ना। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, राजेश जी ने मुझे पैसे दिए ही नहीं, बैंक में जाके जमा करा दिया, मेरे अकाउंट में जाके जमा करा दिए। अब मैं जब अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करूंगा तो क्या करूंगा? बैंक को ही क्रेडिट करोगे? मैं लिख सकता हूँ क्या कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अग्रवाल? मैं क्या एंट्री करूंगा अपनी बुक्स में? बैंक को डेबिट करोगे, मेरे को क्रेडिट करोगे। बात समझ में आ गई ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और इसका एक केस है श्री रेणुकेश्वरा मिल। तो इस सिचुएशन में हालांकि देखो मैं आपको कहूंगा नहीं कि आप इस तरीके से करिए, ठीक है, लेकिन केस है श्री रेणुकेश्वरा राइस मिल्स 93 TTJ 912। अब ये डीमिंग फिक्शन क्रिएट करने के बावजूद भी जो मुझे एक्चुअल में मेरे बैंक में कैश जमा हुआ है उसकी एंट्री में कैश में कर ही नहीं सकता। अगर मैं उस एंट्री को कैश में कर दूं तो दैट विल बी इनकरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्योंकि राजेश जी ने तो मुझे कैश दिया ही नहीं, कैश आया मेरे बैंक में, राइट। तो यहाँ पर मुझे बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और राजेश अग्रवाल को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है सर। इट कैन नॉट कम इनटू कैश रिसीट्स। मेरी कैश रिसीट में आ ही नहीं सकता ये ट्रांजेक्शन। ओके ओके। मेरी कैश रिसीट में आ ही नहीं सकती ये ट्रांजेक्शन, और ये डीमिंग फिक्शन डालने के बाद भी नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप इस तरीके से इसको फॉलो करिए। मैंने आपको एक इसमें रास्ता बताया, लेकिन आप जो भी करिए और जिस भी तरीके से आप अपनी ये 5% की वर्किंग बनाइए, इसका वर्किंग पेपर जरूर बनाए। बिना वर्किंग पेपर बनाए आपको आगे नहीं बढ़ना है किसी भी कीमत। आप वर्किंग पेपर बनाइए, एक्सेल की फाइल में बनाइए। आपको करना क्या है, आप एक कंसोलिडेटेड ट्रायल ले लीजिए एसएससी का, उसमें आपने बैंक अकाउंट ले लिया, आपने कैश अकाउंट ले लिया। ठीक है, बैंक अकाउंट की टोटल रिसीट्स आ गई, कैश अकाउंट की टोटल रिसीट्स आ गई, इसी तरीके से बैंक अकाउंट में टोटल एग्रीगेट पेमेंट्स आ गई सारे बैंक अकाउंटों की, और एग्रीगेट पेमेंट्स कैश की आ गई। उन दोनों को आपने टोटल कर लिया, उसमें से कॉन्ट्रा एंट्रीज को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आपकी निकल गई ग्रॉस रिसीट्स एंड ग्रॉस पेमेंट। सिंपल रास्ता है ना सर। आपने अपने बैंक की रिसीट साइड देखी, कैश की रिसीट साइड देखी, इसी तरीके से आपने बैंक की पेमेंट साइड देखी, उसका एग्रीगेट देखा, और कैश का पेमेंट्स का एग्रीगेट साइड देखा।
उसके अलावा कोई और अगर आपने बैंक अकाउंट के नेचर में चेक्स इन हैंड या इस तरीके से करके कोई अकाउंट खोला हो तो उसको भी कैश एंड बैंक बैलेंस में काउंट करेंगे, वो भी ग्रॉस रिसीट में काउंट होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये क्या बोल रहा हूँ चेक्स इन हैंड, हो सकता है समझ में आया राजेश भाई चेक्स इन हैंड कैसे अकाउंट हो सकता है। अब सपोज कीजिए मैंने एक लोन ले रखा है राजेश अग्रवाल जी से, मैंने एक लोन लिया है राजेश अग्रवाल जी से, ठीक। और अब मैं एक नया लोन लेता हूं उनसे मनीष रस्तोगी जी से, ठीक है सर। पहला ऑलरेडी एक मेरा लोन चल रहा है 10 लाख रुपए का, मैंने राजेश अग्रवाल जी से 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ। अब मनीष रस्तोगी जी से राजेश अग्रवाल जी मुझसे पैसे मांग रहे हैं और मनीष रस्तोगी जी तैयार हो गए कि चलो ठीक है जी मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ। अब मनीष रस्तोगी जी का कहना यह है कि ये जो चेक है मैं राजेश अग्रवाल के नाम को बना के दूंगा। राजेश जी बात समझ में आ गई? जी सर। मनीष जी की कंडीशन है कि जो चेक बना के दूंगा मैं ये राजेश अग्रवाल जी के नाम का बना के दूंगा, राजीव जैन के नाम को बना के नहीं दूंगा, ठीक है सर। अब आमतौर पर जब आप बैंक के टेक ओवर देखते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से हमने कोई लोन लिया हुआ है उसका टेक ओवर देखते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं जब आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेंगे तो 269 एसएस में और टी में उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है सर। तो अगर क्या मैं इस ट्रांजेक्शन को कर लूं तो क्या इसमें सेक्शन 269 एसएस का डिफॉल्ट हो जाएगा मेरे, जब मैं इस लोन को राजेश अग्रवाल के नाम से जमा करूंगा या जब मैं मनीष रस्तोगी जी को ये चेक राजेश अग्रवाल जी देंगे और डेबिट मुझे करेंगे तो क्या सेक्शन 269 टी का और सेक्शन 269 एसएस का कोई डिफॉल्ट होगा? द आंसर इज नो। ये चेक मेरे बैंक में नहीं गया, ये चेक मैंने अपने बैंक से इश्यू नहीं किया। बात समझ में आ गई राजेश जी? आपने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिया मनीष रस्तोगी के नाम का बनाकर, वो मैंने चेक अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राजेश अग्रवाल, और उसमें नीचे चेक नंबर लिखूंगा अकाउंट पे चेक नंबर सच एंड सच ड्रॉन इन द नेम ऑफ मिस्टर मनीष रस्तोगी, राइट। अब वो सेम चेक अब मैं इश्यू करूंगा मनीष रस्तोगी को, मनीष रस्तोगी डेबिट टू चेक्स इन हैंड, ठीक है, और उसमें लिखूंगा अकाउंट पे चेक नंबर सच एंड सच इश्यूड इन द नेम ऑफ मनीष रस्तोगी बाय मिस्टर राजेश कुमार अग्रवाल, ठीक है सर। अब मैंने जब ये राजेश अग्रवाल से लोन लिया और मनीष रस्तोगी जी को दिया, मेरे को लगता है मैंने शायद एग्जांपल उल्टा कर दिया करते करते, लिए ना बात समझ लीजिएगा। कोई बात नहीं सर। तो सर कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब एग्जांपल उल्टा हो गया, लेकिन बात क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि जब मैंने चेक इन हैंड से लोन लिया तो सर वैसे बहुत केस में आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए और ना गए। ना मेरे अकाउंट में आए ना गए। सही बात। मेरे बैंक अकाउंट में दोनों केस में पैसे नहीं है, ना गए मेरे बैंक अकाउंट से, और ट्रांजेक्शन मुझे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। जी 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 जी। अब यहाँ पर एक तो मैंने फ्रेश लोन ले लिया और एक लोन की मैंने रीपेमेंट कर दी, अब इसकी रिपोर्टिंग 269 एसएस में भी होगी। मैं लिखूंगा वहां पे मैंने राजेश अग्रवाल से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, मैं ये भी लिखूंगा अकाउंट पे चेक से लिया है, कोई वॉल्यूशन नहीं है इसमें, मेरे बैंक में नहीं आया कोई बात नहीं, अकाउंट पे ही चेक है वो, ठीक है सर। अब जब मैं इसकी रीपेमेंट करूंगा मनीष रस्तोगी जी को तो मैं लिखूंगा ये 269 में रिपोर्ट करूंगा इसको, वहां मेरी कंडीशन है इट शुड बी रीपेमेंट शुड बी बाय एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक है, वो कहते हैं इट शुड बी ड्रॉन इन द नेम ऑफ द पेई, वो चेक किसके नाम का है? मनीष रस्तोगी के नाम का है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है सर। 269 एसएस का भी वायलेशन नहीं है, 269 टी का भी वायलेशन नहीं है। ये चेक की बजाय आरटीजीएस से भी हो सकती है ट्रांजेक्शन, एनईएफटी से भी हो सकती है, ठीक है सर। तो ये कोई भी एनएफटी, आरटीजीएस, ड्राफ्ट या चेक, ये कोई भी ना तो मेरे बैंक अकाउंट में आया ना मेरे बैंक अकाउंट में गया, तो अब मुझे बैंक अकाउंट की नेचर का एक और अकाउंट अपनी लेजर के अंदर अपनी बुक्स के अंदर खोलना पड़ता, ठीक है सर। बात समझ में आ गई ना? तो ये जो है मेरी ग्रॉस रिसीट में काउंट होगा, जब मैं अपना डिनोमिनेटर देखूंगा ग्रॉस रिसीट का, ग्रॉस पेमेंट का, तो ये 10 लाख रुपए उसमें इंक्लूड होंगे। बात समझ में आ गई ना?
सर लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे क्लू है कि आपने तो चेक मेरे को नहीं दिया ना, इट शुड बी ड्रॉन इन द नेम ऑफ लोन गिवर। हाँ तो उसी के तो मनीष अभी अब लोन लिया किससे दिया किसको क्लियर कर लेते हैं, फिर दोबारा समझ लेते हैं। कोई भी ले लो एग्जाम्पल। अच्छा चलो, हमें मनीष जी के पैसे देने थे जी 10 लाख रुपए। जी आपसे मैंने 10 लाख रुपए का फ्रेश लोन दिया। ठीक है। आपने एक 10 लाख रुपए का चेक बनाया मनीष रस्तोगी जी के नाम से और डीपीएन मुझसे साइन करा लिया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। ठीक। अब ये चेक किसके नाम का है? मनीष जी के नाम का। मुझे पेमेंट किसकी करनी है? राजेश अग्रवाल की। नहीं नहीं, मनीष मनीष रस्तोगी की। दोबारा एग्जांपल गलत मत करो ना, आपसे तो ले रहा हूँ, मनीष जी को दे रहा हूँ। मनीष जी ओके का मेरा पुराना लोन आउटस्टैंडिंग था। ओके ओके ओके। मनीष जी का लेकिन मेरा सर पुराना, वो चेक आपने ड्रॉन नहीं किया ना सर। ये कहाँ लिखा है? वो कहता है इट शुड बी बाय एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन इन द नेम ऑफ द पे। आप अपने वर्ड मत डालो उसके अंदर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सो ओके। आप अपने वर्ड इंपोर्ट मत करो उसके अंदर। ठीक है ठीक है किताब में सर। लिखा है वो पढ़ना है। ठीक है ठीक है। फिर इसमें तो क्लियर हो गया। कोई फिर क्लियर हो वायलेशन गया। नहीं है। कोई वायलेशन नहीं है। इसमें कोई वायलेशन नहीं है, ना सेक्शन एसएस की वायलेशन है, ना सेक्शन 269 टी की वायलेशन है। कोई वायलेशन नहीं है, ठीक एब्सोल्युटली है। कोई वायलेशन नहीं है इसमें। ठीक है सर, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये एंट्री मेरे बैंक में जी नहीं सर। आई। और यही सेम सिचुएशन 43 में भी लागू होती है। अब आप सपोज को इस एग्जांपल को समझ लो कि राजेश अग्रवाल मेरे डेटर हैं और मनीष रस्तोगी मेरा क्रेडिटर है। ठीक है सर। अब राजेश अग्रवाल ने 10,000 रुपए से ज्यादा का मुझे चेक दिया, मनीष रस्तोगी के नाम का बना। तो मैंने कहा कि यार बैंक की क्लियरिंग के झंझट में नहीं पड़ते, आप एक काम करिए राजेश जी, आप एक 20 लाख रुपए का चेक बनाइए, मुझे मनीष जी के पेमेंट देने हैं और आप सीधा मनीष जी के अकाउंट में आरटीजीएस बना दीजिए। ठीक है, और मैंने आपको उसकी रसीद काट के दे दी, आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। अब ये 43 का वायलेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल नहीं होगा सर। नहीं होगा सर, हाँ नहीं नहीं होना होगा। चाहिए। किसी कीमत पर नहीं होगा। आपने राजेश अग्रवाल से चेक से लिया, आपने उसको रसीद काट के दी अपने पास, आप उसे बुक्स में चेक्स इन हैंड अकाउंट में जमा करेंगे, वो पेमेंट आपके बैंक में नहीं जाएगी और वो सेम चेक आप मनीष रस्तोगी को इशू कर देंगे। ठीक है सर, मनीष रस्तोगी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, आपके डेटर से पैसे आ जाएंगे और क्रेडिटर को पेमेंट चली जाएगी। ठीक है सर, और कहीं पर किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट 43 का नहीं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सर? तो ये आपको जब आप कैश रिसीट का अकाउंट बनाएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बात तो बड़ी क्लियर है, मैंने आपको पहले भी बता दी, जो आपका प्रोप्राइटर है या एचयूएफ है और एचयूएफ से आपने कैपिटल अकाउंट में कोई कैश पेमेंट ली और दी है, तो वो आपकी कैश पेमेंट में और ग्रॉस रिसीट में दोनों में काउंट नहीं होगी। ना तो वो ग्रॉस रिसीट में काउंट होगी, तो आपको एलिमिनेट क्या करना है? कॉन्ट्रा एंट्री एलिमिनेट करनी है। ठीक है सर, जो मैंने आपको ये चेक्स इन हैंड की कहानी बताई ये आपको ऐड करनी है। ठीक है सर, पार्टनर सॉरी प्रोप्राइटर से या एचयूएफ के कैपिटल अकाउंट में कोई कैश का लेन देन हुआ है, उसको आपको ऊपर से भी हटाना है, न्यूमरेटर में से भी हटाना है और डिनोमिनेटर में से भी हटाना है, दोनों में से आपको। हालांकि ये इतनी कंबरसम कैलकुलेशन करती है फॉर द सेक ऑफ नथिंग, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। जितने स्पीकर हैं उनकी सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन और जितने आदमी हैं उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। तो मेरा कहना इतना है कि आप जो भी व्यू पॉइंट लें, आप उस व्यू पॉइंट की वर्किंग बना के रख लीजिए और वो वर्किंग आपकी फाइल में मौजूद होनी चाहिए कि क्यों आपने इसकी लिमिट को 10 करोड़ समझा और क्यों आपने इसकी लिमिट को 1 करोड़ समझा। जी जी सर। कल को अगर आपके ऊपर नॉन टैक्स ऑडिट का कोई डिफॉल्ट आए तो एटलीस्ट वो वर्किंग आपकी स्किन को सेव करेगी और सेक्शन 273 कैपिटल बी को आपको फायदा मिल जाएगा, बिकॉज देयर इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर नॉट डूइंग दिस। राइट? तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें एक और नई चीज निकल के आई ग्रॉसरी शीट के केस में। अब एक मेरी ओडी लिमिट ली हुई है, मैंने कैश क्रेडिट लिया हुआ है बैंक से। ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंस था मेरा 10 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 90 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस, 80 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर ली।
ये किसी को भी जो हैंड रेज कर रहे हैं, ये किसी का हैंड रेज का मैसेज आया है तो बोले अगर कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में डाल दें। तो चैट बॉक्स से मैं क्वेरी ले लूंगा। क्वेश्चन आंसर में 8 क्वेश्चन आंसर आए हैं सर। जी सर, जी सर। क्वेश्चन आंसर बाद में लेने कि अभी इकट्ठे जैसे करना है? एज यू लाइक सर, एज यू लाइक, जैसे आपको कंफर्ट हो। चलो ये एक पॉइंट कवर करके फिर एक बार क्वेश्चन ले लेते हो, फिर आगे बढ़े। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि कैश क्रेडिट लिमिट है आपके पास। अब मैंने कैश क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 10 लाख रुपए, ग्रॉस रिसीट्स आ गए, इसके अंदर ग्रॉस पेमेंट्स आ गई और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 90 लाख रुपए। अब ये जो 80 लाख रुपए की मेरी जो लिमिट मैंने यूज कर ली, बॉटम में पॉइंट, जी जी सर। ये जो 80 लाख रुपए की मैंने लिमिट यूज कर ली, जी। ये मेरे ग्रॉस रिसीट में ऐड होगा कि नहीं होगा? नो। क्यों नहीं ऐड होगा सर? ये तो हमने लिमिट यूज की है ना सर, ये तो अपने ही पैसे है ना। अगर ये टर्म लोन होता तब टर्म मेरी रिसीट लोन में आता होता, नहीं होता? अच्छा। ओके ओके अगर ये टर्म लोन होता तो मेरी रिसीट में आता ही नहीं आता। ओके। इन द सेम मैनर अगर मैंने रीपेमेंट कर दी, ओपनिंग मेरा 90 लाख था, मैं एग्जांपल को उल्टा कर दूं और क्लोजिंग मेरे क्रेडिट 10 लाख रुपए, तो फिर मैंने तो आ 80 ही गया, लाख फिर 80 तो आ लाख ही गया। रीपेमेंट कर दी मैंने। हाँ फिर तो आ गया, आ गया। ठीक है ना सर? तो ये पेमेंट आपका ग्रॉस रिसीट में और ग्रॉस पेमेंट में ये आपको जो इंक्रीज और डिक्रीज वो लेना पड़ेगा। सीसी लिमिट और ऑडी है वो भी आपको कवर करना होगा। ठीक है सर, ठीक। अब ये छोटा सा डिसीजन है कि लिमिट 1 करोड़ होगी कि 10 करोड़ होगी और इसकी वर्किंग की कॉम्प्लिकेशन कितनी सारी। पार्टनरशिप के केस में मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और इनकम टैक्स का है। ठीक है सर? वो कहता है कि जो पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म है दे आर वन एंड द सेम थिंग। और जो पार्टनर की जो रिसीट है, पार्टनर के साथ अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, तो वो आपको कैश रिसीट में और कैश पेमेंट में काउंट नहीं होगी। ये जजमेंट है CIT वर्सेस RM चिदम्बरम 106 ITR 292। ठीक है सर? अब मैं ये नहीं कहता कि आप इसको फॉलो करो। आप पार्टनर को अलग एंटिटी मान लीजिए, उससे जो कैश पेमेंट आई है आप उसको 5% की लिमिट में कंप्यूट कर लीजिए, मान लीजिए आप उसको। मैं आपसे नहीं कहता कि आप मत मानिए, लेकिन अगर कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं फंस जाए, तो ये जजमेंट आपके काम आएगा। ठीक है सर? एक और इशू आया। अब जो पार्टनर से, अमित अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है, नए फेस आपने पैनल पे खोल दिए सर। पार्टनरशिप फॉर्म से आपको इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन मिलता है। ठीक है सर? आप अपने नाम से कोई बिजनेस नहीं करते, यू आर ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। आप प्रोफेशनल फर्म में भी हो सकते हैं और बिजनेस वाली में भी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है और अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। अब सपोज करिए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मुझे जो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट आया अपनी पार्टनरशिप फर्म से, दैट एक्सीड्स ₹50 लाख। और या कोई एक्स आदमी है, उसको रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट आया किसी पार्टनरशिप फर्म से, दैट एक्सीड ₹1 करोड़। ठीक है सर? अब क्वेश्चन ये है कि टैक्स ऑडिट होगा कि नहीं होगा। मैं डायरेक्टली कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मेरी कोई टर्नओवर नहीं है, मुझे पार्टनरशिप फॉर्म से रेम्यूनरेशन आ रहा है और इंटरेस्ट। ठीक है सर? तो कलकत्ता ट्राइब्यूनल के कई सारे जजमेंट हैं, उन्होंने कहा कि पार्टनर के हाथ में चाहे उसका नाम रेम्यूनरेशन हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, अगर वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में प्रोफेशनल इनकम है तो पार्टनर के हाथ में इट विल बी प्रोफेशनल इनकम। अगर वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे अगर वो बिजनेस है तो पार्टनर्स के हाथ में इट विल बिकम बिजनेस इनकम। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मुझे 50 लाख रुपए से ज्यादा रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट आ गया, ठीक है सर, तो मेरे को ऑडिट कराना पड़ेगा। और अगर मैं बिजनेसमैन हूं, पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है, तो मेरी 1 करोड़ या 10 करोड़ वट एवर विल बी द लिमिट, उसके हिसाब से मेरी ऑडिट की लायबिलिटी डिटरमिन होगी। ये 2 जजमेंट हैं, सागर दत्ता वर्सेस DCIT, ITA नंबर 692 कोलकाता 2012,
कमल गांगुली वर्सेस DCIT, ITA नंबर 2135, कोलकाता 2008। ठीक है सर, बात समझ में। अब ये जब जजमेंट आ गया तो मेरे दिमाग में वो एक बात आ गई, अब मुझे पार्टनरशिप फर्म से 40 लाख रुपए इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन, ठीक है, तो मैं 44 ADA में चला जाऊं? नो नो, क्यों? क्यों भाई? वही तो कह रहे हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में नेचर होगा इनकम का, वही आपके हाथ में रहेगा। मेरे को लॉजिकली तो नो, बट आंसर मेरे पास नहीं है, लॉजिकली तो नो। ठीक है सर, अब कोई बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन को 1 करोड़ रुपए से कम का रेम्युनरेशन आया है ना, अब वो कहता है कि मेरे से 8% पे टैक्स ले लो आप। 44 AD में आ जाता हूँ मैं तो। हाँ, सिंपल बात समझ में आ गई सर। अब ये कर सकते कि नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आ गया सर, ये मद्रास हाई कोर्ट में पहुंच गया लड़ते लड़ते क्वेश्चन। एक आनंद कुमार साहब हैं जी, आनंद कुमार साहब ने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से फैब्रिकेट किया, बड़े अच्छे से बनाया कि देखिए साहब, जो करेक्टर इनकम का पार्टनरशिप फर्म के हाथ में है, यदि वही करेक्टर पार्टनर्स के हेड में है तो मुझे आपको 44 AD का बेनिफिट देना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपको मेरी इनकम 8% से ज्यादा पे आप मुझसे टैक्स नहीं ले सकते। और उसने अपनी इनकम 44 AD में डिक्लेयर करके और 8% पे टैक्स दे दिया। अगर प्रोफेशनल होता तो 50% पे टैक्स दे देता 44 ADA में जाके। ठीक है सर, तो मद्रास हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ आनंद कुमार वर्सेस ACIT 2020, लेटेस्ट जजमेंट है 122 taxbed.com 252, इसमें उन्होंने कहा आनंद कुमार जी ऐसा नहीं चलेगा, यू आर नॉट एंगेज इन बिजनेस। सेक्शन 28 में क्लॉज 5 में डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके आपके इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन को बिजनेस इनकम में कन्वर्ट कर दिया है, बट ना तो आप कुछ बेच रहे हो, ना ही आप कोई अपनी सर्विसेज एंटर कर रहे हो, तो आपकी जो रिसीट्स हैं इट विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर एज पर द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय अवर इंस्टीट्यूट। हमारे इंस्टीट्यूट की इंटरप्रिटेशन को उन्होंने बीच में बोला, हालांकि आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, क्योंकि लॉ की अगर एक तरफ तो आप कहोगे कि आपकी ग्रॉस रिसीट के लिए काउंट करेंगे हम और आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, जी, दूसरी तरफ आप कहोगे कि नहीं साहब आप 44 ADA में नहीं जा सकते, अब ये ग्रॉस रिसीट नहीं है। ठीक है सर, हालांकि माइंड से बात गले नहीं उतरती, जब गले नहीं उतरती तो फिर आपको कुछ ना कुछ रास्ता बना के लॉ में उसको फिट बिठाना पड़ेगा। बात गले से नहीं उतरती कि आपने आपको 50 लाख रुपए रेम्युनरेशन आया, इंटरेस्ट आया और आपने कहा कि 8% ले लो और मेरी जान छोड़ दो। तो कोर्ट ने इसको अगेंस्ट जजमेंट दिया कि इसको 8% या 6% में नहीं ले जा सकते, बिकॉज यू हैव नॉट रेंडर्ड एनी सर्विसेज, ना तो आपने कुछ सर्विसेज का कंसिडरेशन मिला आपको, ठीक है, और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई आपने सेल रेंडर किया, यू आर नॉट एंगेज इन रेंडरिंग एनी सर्विसेज और सेल्स, दैट इज वाई आपकी ग्रॉस रिसीट में काउंट नहीं होगा और इसमें आपको 44 AD और 44 ADA का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर, तो ये क्लियर कर दिया है मद्रास हाई कोर्ट। अब इसी पार्टनरशिप फर्म के साथ हमारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10(2)A में हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो क्या 14A की डिसअलाउंस हो सकती है? इफ आई एम अर्निंग इनकम फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म इन द फॉर्म ऑफ रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट और उसके अगेंस्ट में कुछ एक्सपेंसेस क्लेम कर रहा हूं, है ना, उसके अगेंस्ट क्या मैं एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। उस इनकम के अगेंस्ट मैं एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता हूँ। अब मैंने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी का डेप्रिसिएशन है, मेरे पास ड्राइवर है, ड्राइवर की तनख्वाह है, कन्वेंस एक्सपेंडिचर है, वट एवर इट इज, तो उसके अगेंस्ट मैं डिडक्शन ले सकता हूँ। तो अगर मैं कोई डिडक्शन लेता हूँ बिकॉज माई शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)A, तो क्या 14A की डिसअलाउंस होगी? देन आंसर इज यस, और ये स्पेशल बेंच का जजमेंट है, श्री विष्णु अनंत महाजन वर्सेस ACIT,
ITA नंबर 3002 अहमदाबाद 2009, और ये जजमेंट की डेट है 25 मई 2012। आप दोबारा नोट कर लें, श्री विष्णु अनंत महाजन वर्सेस ACIT, ITA नंबर 3002 अहमदाबाद 2009, डेटेड 25 मई 2012। ठीक है सर। अब अगला टॉपिक, पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं फिर अगला टॉपिक करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये है मिस्टर रघुवेंद्र पतंगे। Is CA under tax audit assignments legally authorized to have access to obtain all the books of accounts from the SSC wherein the SSC denies for the production of the same? देखिए सर, कंपनीज एक्ट में आपके पास पावर है, इनकम टैक्स एक्ट में आपके पास पावर नहीं है। अगर आप कंपनीज एक्ट का ऑडिट करते हैं तो कंपनीज एक्ट के ऑडिट में, एक्ट के अंदर आपके पास ऑडिटर के पास पावर है, आप एसएससी को नोटिस इशू कर दीजिए, जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसको आप नोटिस इशू कर दीजिए टू आस्क हिम टू प्रोड्यूस सच एंड सच डॉक्यूमेंट्स। इनकम टैक्स एक्ट में आपके पास कोई पावर नहीं है। अगर वो आपको रिफ्यूज कर देता है तो आपका कुछ नहीं जाता, आपको अपनी रिपोर्ट में लिख दीजिए कि मैंने ये डॉक्यूमेंट मांगे थे विच हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू मी फॉर वेरिफिकेशन। तो आपके पास पूरा हथियार है, आप फॉर्म नंबर 3CB के क्लॉज नंबर 3 में जाके आप क्वालिफिकेशन कर दीजिए। ठीक है सर, क्लॉज नंबर 3 में जाके आप क्वालिफिकेशन कर दीजिए that this is the amount of information which has not been supplied for। ठीक है रघुवेंद्र जी। अगला है जितेंद्र मेहता, whether corresponding figure of previous year needs to be given in the case of audit of non corporate clients। इसकी जरूरत नहीं है सर, अभी तक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है सर, इफ यस तो नहीं है। सिद्धार्थ पत्रा, if SSC not deposited before the due date of return, then what will be auditor qualification? देखिए हमारी ऑडिट रिपोर्ट तो 1 महीने पहले चली जाएगी। सिद्धार्थ पत्रा जी, मैंने आपको कहा कि एसएससी ने हमारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक 43B की पेमेंट नहीं की, उसके पास टाइम है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक पे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम 43B की क्लॉज में जाके उसका अमाउंट लिख दें कि इसके अमाउंट की पेमेंट नहीं। ठीक है सर, अब एसएससी जब उसको डिपॉजिट करा देगा तो फिर वो आपसे रिवाइज, मैंने आपको बताया रूल 6G में सब रूल 3 ऐड कर दिया, वो आपसे रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ले लेगा और उसके बाद वो रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी और ये मैटर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, आप फॉर्म नंबर 3CD की क्लॉज नंबर 5 में जाइए, आप रेस्पेक्टिव क्लॉज नंबर में आप उसको रिपोर्ट मत करिए और क्लॉज नंबर 5 में आप जाके लिख दीजिए सच इज द अमाउंट ऑफ 43B which is payable and the SSC has assured that the amount will be paid before due date of filing of return of income। ये एक मेरा सजेशन है, करना आपको वो है जो आपको अपील करे, जो आपको अच्छा लगे। उमेश कुमार वैश्य साहब, कैन वी फाइल ITR and tax audit report on the same day, say 31st October, और we have to compulsorily follow? नहीं, 1 महीने के गैप की जरूरत नहीं है सर, बस ये करना है आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले फाइल होनी चाहिए, ये क्लियर है। आपको रिटर्न पहले फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने रिटर्न पहले फाइल की, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बाद में फाइल की, तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। समझ गया? गलती से आपसे इनकम टैक्स की रिटर्न पहले फाइल हो गई, आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बाद में फाइल की, तब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के बाद रिवाइज करें। ठीक है सर, तो इन एनी केस आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले फाइल करनी है और रिटर्न आपको उसके बाद फाइल करनी है। प्रवीण यादव जी, सर हाउ टू मेंशन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अवर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? देखो सर, अभी एक मैकेनिज्म है, मशीन का फॉर्मेट है, मशीन ने आपको लिखने की परमिशन दी है और आपको क्वालिफिकेशन भी स्टैंडर्ड देती है, उसमें भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन यूज नहीं करता हूँ, तो ये ऐसे 700 के जो वर्किंग है वो आपको वर्किंग पेपर बना के और सिग्नेचर करा के आपको अपनी फाइल में रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? और अगर आप कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो अदर एनेक्सर बना के आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, अदरवाइज रिपोर्ट का पार्ट तो नहीं बन सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, और मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगा प्रवीण यादव जी का क्वेश्चन रिप्लाई करते समय कि हमें स्टैंडर्ड जो क्वालिफिकेशन क्लॉज नंबर 5 के लिए दी हुई है उनको यूज करने से बचना चाहिए। बहुत सारी वो क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जो ठीक नहीं है,
तो आप अदर्स में जाइए, अपनी क्वालिफिकेशन खुद से ड्राफ्ट करिए और आप वो क्वालिफाई करिए। Pranvesh Arya, sir, whether non-business individual has to upload Form 10E before filing of the income tax return? मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इनके लिए फॉर्म नंबर 10E है कि नहीं, लेकिन साथ ही करना पड़ेगा, रिटर्न से पहले करना तो पड़ेगा, ऑप्शन अगर है तो एक बार चेक कर लीजिएगा सेक्शन में। सर, व्हाट आर टर्नओवर लिमिट फॉर सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर के लिए, प्रोफेशनल के लिए सर, सर्विस सेक्टर से मतलब नहीं होता, प्रोफेशनल में और बिजनेस में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रोफेशनल में इंटेलेक्चुअल का प्रयोग ज्यादा होता है, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग कम होता है। मशीनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर लेबर है, इट इज ड्रिवन बाय इंटेलेक्चुअल, ठीक है सर। तो जहां दिमाग का प्रयोग ज्यादा है, अब दिमाग का प्रयोग तो छोटे छोटे काम में भी होता है, चाय बनाने में भी दिमाग का प्रयोग होता है, ठीक है ना, सब्जी काटने में भी दिमाग का प्रयोग होता है, बिना दिमाग के तो कुछ नहीं होता। तो हम परसेंटेज देखते हैं कि किस काम में लेबर कंपोनेंट ज्यादा है, किस काम में इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट ज्यादा है। तो जहां इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट ज्यादा है, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, दैट अमाउंट्स टू प्रोफेशन। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और लेबर ज्यादा है, ठीक है सर, इंटेलेक्चुअल कम है, दैट कम बिकम्स बिजनेस। बड़ा सिंपल बात। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल की बात नहीं कर रहे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रोफेशन ह्यूमन इंटेलेक्ट का होगा, बात समझ ले इस बात को, थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है। जब आप टेक्निकल सर्विसेज की बात करते हैं तो बेशक आपको 194J में आकर आपको उसको टीडीएस काटना पड़ जाए, ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पर बात, जब हम प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, कि जहाँ ह्यूमन इंटेलेक्ट है वो प्रोफेशन। तो सर्विस से मतलब नहीं है, सर्विस विल बी बिजनेस। तो आपको इस पैरामीटर को लगाना पड़ेगा। 11 प्रोफेशन की लिस्ट है रूल 6F में, तो आप में देखें तो 11 प्रोफेशन तो उन्होंने बता दिए कि 11 तो हैं। उसके अलावा जहां इंटेलेक्चुअल है तो आप यू कैन प्लीड दैट वी आर अ प्रोफेशनल। हितेंद्र ठक्कर जी, इज देयर एनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इफ वी सेटल डेटर्स क्रेडिटर्स बाय जेबी? जेबी से आप डेटर क्रेडिटर्स को सेटल नहीं कर सकते, ठीक है हितेंद्र ठक्कर जी। अभी जब हमने डेटर क्रेडिटर्स को सेटल करने की बात की थी तो हमने कहा था डेटर क्रेडिटर्स कैसे डिस्चार्ज होंगे? राजेश अग्रवाल जी एक चेक देंगे और वो चेक मैं रस्तोगी जी को इशू करूंगा, ठीक है सर। जनरल वाउचर से आप डेटर क्रेडिटर्स को सेटल नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो 43 का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। परवीन यादव जी, हाउ टू क्वालिफाई रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एंड यूजफुल लाइफ? देखो, इनकम टैक्स एक्ट में जो डेप्रिसिएशन होती है वो यूजफुल लाइफ के हिसाब से नहीं होती, और वो क्लॉज नंबर 18 में रिपोर्ट होती है। क्लॉज नंबर 18 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, वहां पर आपको डेप्रिसिएशन रिपोर्ट होती है। तो ये प्रवीण जी आपने कहीं से कुछ गलत पढ़ लिया है। यूजफुल लाइफ का जो डेप्रिसिएशन होता है वो कंपनी एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में यूजफुल लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है सर। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप जरा हटा दोगे अब यहाँ से सर? मैंने सर हटा दिए सर, मैंने सारे क्वेश्चन अब हटा कोई दिए। नया फ्रेश क्वेश्चन आएगा तो लेंगे, वरना आगे जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन वैसे बार बार आता है, मेरे पास व्हाट्सएप भी आया हुआ है। जी सर। वो ये पूछते हैं कि सपोज हम 44 एडीए में जा रहे हैं, 50% इनकम शो कर रहे हैं, तो बाकी 50% यदि हमने कैश विड्रॉ कर लिया तो दैट इज सफिशिएंट, या उसके भी बाउचर वगैरह हमने कोई एक्सपेंडिचर के बाउचर वगैरह लेने हैं, क्या करना है उसमें? देखिए सर, इसके ना कई सारे जजमेंट हमारे पास आ गए हैं जी कि आप 44 एडी में हो या 44 एडीए में। जी अब मैं दोबारा से राजेश जी के क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लेता हूँ, जी बढ़ा लेता हूँ। अब मैं सपोज करिए कि मैं 44 एडीए में हूँ जी और मेरी ग्रॉस रिसीट 40 लाख रुपए है, ठीक है। अब मैंने जाके 50% डिक्लेयर कर दिया, 20 लाख रुपए पे इनकम डिक्लेयर कर दिया, और हो सकता है वो 40 के 40 लाख रुपए मेरे बैंक में रखे हों, हो सकता है 40 लाख में से कुछ पैसे मैंने निकाल लिए हो सकता है मैंने 10 लाख रुपए निकाले हो, 30 लाख रुपए बैंक में हो,
हो सकता है मैंने 20 लाख से ज्यादा निकाल लिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। जी सर। अगर आपने 20 लाख या उससे ज्यादा निकाल लिया तब तो कोई सोचने वाली आवश्यकता ही नहीं। ठीक है सर, क्योंकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने नहीं है। सिर्फ अब भी क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं कि सर 44 एडी वालों को या 44 एडीए वालों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है कि नहीं करनी, क्वेश्चन पूछते हैं सर। देखिए सर, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करनी है, अगर हम ये इंटरप्रिटेशन देंगे दैट इंटरप्रिटेशन विल बी इनकरेक्ट। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, किस चीज की मेंटेन करनी है? कम से कम आपको अपनी ग्रॉस रिसीट तो डेमोस्ट्रेट करनी पड़ेगी। आपको ये तो बताना पड़ेगा, अगर मैं कह रहा हूँ साहब मेरी ग्रॉस रिसीट 40 लाख रुपए है, तो आपको 40 लाख रुपए जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि 40 लाख रुपए आपने कैसे किए। तो जिस तरीके से मेरी इनकम कंप्यूट होगी, हो सकता है मुझे एक्सपेंडिचर का लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करने पड़े, चाहे मुझे सिंगल एंट्री पे मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूं, मैं डबल एंट्री ना करूं। 44 डबल ए कभी ये नहीं कहता कि आपको डबल एंट्री मेंटेन करनी है कि सिंगल एंट्री मेंटेन करनी है। आपको कितनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, विच enables द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर टैक्सेबल इनकम, उतनी किताबें मेंटेन करनी है। तो 44 एडी और 44 एडीए के केस में एटलीस्ट आपको, जिससे आप अपनी ग्रॉस रिसीट को जस्टिफाई कर सको, जिससे आप अपने टर्नओवर को जस्टिफाई कर सको, उतनी बुक्स तो आपको मेंटेन करनी ही करनी पड़ेंगी। ठीक है सर। तो अब साहब का क्वेश्चन लिया कि हमने 40 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए हैं और हमने 20 लाख रुपए की इनकम दिखा के छुट्टी पाई। गलत। अब अफसर हमारा क्या बिगाड़ सकता है? यही क्वेश्चन है ना आपका। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ये भी ठीक है। आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसमें तो एडिशन हो ही कि चलो जाएगी। मैंने 10 लाख रुपए निकाल लिए, 30 लाख रुपए बैंक में पड़े, ठीक है, मेरा क्वेश्चन, या मैंने हाँ 20 मेरा, लाख रुपए निकाल लिए, 20 लाख का हिसाब देना है कि नहीं देना, नहीं देना, चलो ये क्लियर हो गया। हाँ बस बस यही क्वेश्चन था, बस बस। 20 लाख का हिसाब नहीं देना, ये तो अलग क्वेश्चन है। मैं तो आगे बढ़ गया इससे, मैं तो इससे आगे बढ़ गया। आपने 20 लाख रुपए कैश निकाल लिए, अब मुझे उसका कोई हिसाब नहीं देना कि मेरे पास कोई किताब पर्चा नहीं है, मेरे ऊपर 48 लागू नहीं होता, 40 AIA भी लागू नहीं होता। अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा, लास्ट ईयर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, इस साल आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है, और इस साल मैंने 44 एडी अवेल कर लिया और मैंने टीडीएस काटना भूल गया, डिसलाउंस हो जाएगी क्या 40 आईए की? द आंसर इज नो, नहीं होगी। क्या कहता है स्टार्टिंग में? सब्जेक्ट टू नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 28 to 43C। 43B भी नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है? व्हेनेवर यू आर डिक्लेयरिंग योर इनकम अंडर सेक्शन 44 AD और 44 ADA, तब आपको ना तो 40A IA की डिसअलाउंस होगी, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस की डिसअलाउंस नहीं होगी। आपने 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट कर दी, उसकी डिसअलाउंस नहीं होगी। ठीक है सर। आपने जीएसटी जमा नहीं कराया, उसकी डिसअलाउंस नहीं होगी। 43B की कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगी 44 AD में जवाब। ठीक है सर। आपने 20 लाख रुपए बैंक से निकाले, आपको हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई खर्चा नहीं देना। अब मैं आगे बढ़ गया कि मैंने निकाली 10 लाख, 20 लाख निकालने थे, मेरे बैंक में 30 लाख पड़े हैं, क्या मैं अब भी कह सकता हूँ कि मैंने तो 20 लाख ही कमाए हैं जी? नो। देखो सर, जो लॉजिकल माइंड है वो तो यही कहता है जो आप कह रहे हो, लेकिन जो 3 जजमेंट है, 4 जजमेंट, वो कहते हैं सिर्फ मुझे ये प्रूव करना है कि ये टर्नओवर जो पैसे आए ये बिजनेस के हैं। जो मैंने टर्नओवर 40 लाख रुपए की दिखाई है, उस 40 लाख के अलावा ये रिसीट नहीं होनी चाहिए। जब तक ये रिसीट उस 40 लाख के में काउंट कर रही है, तब तक मेरा 50% या 8% ही होगा। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपके बैंक में ज्यादा पैसे पड़े हुए, मैं तो 69 कैपिटल लेके एडिशन करूंगा। ठीक है सर, जजमेंट लिखवा रहा हूं, आप नोट कर लो। हाँ वो जजमेंट जरूरी है सर, ये तो। लेटेस्ट जजमेंट लिखवा रहा हूं 2020 का। थॉमस एपेन, थॉमस THOMAS थॉमस एपेन EAPEN वर्सेस ITO 2020 180 ITD 741। सुरेंद्र पाल आनंद
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है 192 टैक्समैन 264 मोहनलाल अग्रवाल वर्सेस आईटीओ। जब आप लिख लो तो मुझे बता देना, मैं फिर आगे टॉपिक ले लूंगा। नहीं, ठीक है ठीक है तो आपकी स्पीड से ही पता चलेगा कि मुझे बाकी लोगों ने लिख पाए कि नहीं लिख पाए। ये नहीं, ठीक बात है। मोहनलाल मोहनलाल अग्रवाल अग्रवाल वर्सेस वर्सेस आईटीओ, आईटीए नंबर 1750 कोलकाता 2018। ठीक है। नंदलाल पोपली वर्सेस डीसीआईटी। ये तो मैडम का ही राइटिंग है, रानो नंद जैन ने लिखा है। जी जी, नंदलाल पोपली वर्सेस डीसीआईटी 160 आईटीडी 413। जी। ठीक है सर। तो ये जजमेंट सब आपके फेवर में है कि अगर आपने कम भी पैसे निकाले हैं तो भी आपको 50% या 8% या 6% पे टैक्स देना है, उससे ज्यादा पे नहीं देना। सर मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूंगा, कुछ डिसीजन ऐसे भी हैं जो रेवेन्यू के फेवर में है? अभी मुझे दिखा नहीं, अच्छा, अभी तक नहीं आया। अभी तक ठीक है। मुझे को दिखा नहीं है। हालांकि देखो लॉजिकली अगर मैं अपनी इंटरप्रिटेशन की बात करूं, अपनी समझ की बात करूं, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन क्या होता है कि जब हम एक्रूवल सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आज मैंने पेमेंट नहीं की तो नेक्स्ट ईयर तो कर सकता हूँ ना पेमेंट। ये तो जरूरी नहीं है ना कि 40 लाख रुपए बैंक में रखें तो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट नहीं कर सकता। ठीक है ना, लाइबिलिटी खड़ी हो सकती है और मुझे कैश में पेमेंट करनी है। अगर मैं 44AD में और 44ADA में हूँ तो मुझे कैश में ही पेमेंट करनी है, राइट? तो मुझे जरूरी नहीं है कि चेक से देनी हो, तो मैं अगले साल बैंक से निकाल लूंगा, नोबडी स्टॉप्स मी। ठीक है, तो सर तो इसलिए ये जजमेंट सारे लॉजिकल हैं, कोई इसमें इतना ठीक है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 44AD का 5 मिनट और लगाऊंगा और उसके बाद डेरिवेटिव की चर्चा करेंगे। बज गए 5:37 और सही 6 बजे, एंड करेंगे हम। सही 6 बजे एंड कर देंगे। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखता हूँ राजेश भाई। आप सर हर चीज का ध्यान रखते हो, टाइम का ही मतलब नहीं है, आप हर चीज का ध्यान। तो 44AD की हम बात कर रहे थे। 44AD में जो 2 करोड़ की टर्नओवर तक हम 44AD यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। तो जब भी कोई हमारे पास एसएससी आता है अपने ऑडिट के, तो पहले आप इसको इस तरीके से समझिए कि पहले आपके घर में कोई ग्राहक, कोई मेहमान आता है, तो आपके घर में एक ड्राइंग रूम है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि इसको ड्राइंग रूम में बिठाना है कि अंदर ले जाना है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए घर में 44AD है, 44ADA का कमरा है। तो जब भी कोई एसएससी आपके पास आया तो पहले आपको देख रहा है कि भैया इस कमरे में जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कमीशन इनकम नहीं आती, प्रोफेशनल इनकम नहीं आती, 44A की इनकम नहीं आती, है ना, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भैया आप इस कमरे में बैठ जाओ और आपको अंदर नहीं जाना। बात समझ में आ गई? बाकी जो इस कमरे में नहीं आएगा उनके लिए 1 करोड़ की 10 करोड़ की लिमिट लगेगी। बड़ा सिंपल तरीका है। आपके पास क्लाइंट आया, पहले इस कमरे में देख लीजिए भैया इस कमरे में आ रहे हो, 44AD वाले में एलिजिबल हो इस कमरे में आने के लिए कि नहीं हो। अगर इस कमरे में आने के लिए एलिजिबल हो तो पहले इसी कमरे में रहो, फिर डिसाइड करेंगे आपको ऑडिट होगा कि नहीं होगा। आप 8%, 6% या 50% दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे, ठीक है, फिर डिसाइड करेंगे आपको ऑडिट होगा नहीं होगा। आप इस कमरे के लिए एलिजिबल नहीं हो तो फिर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए, वट एवर द केस में भी, या 50 लाख रुपए, वो आपकी सिचुएशन बनेगी। तो ये बात होगी हमारी 44AD की और 44ADA के। अब यहाँ पर एक जो दूसरा पॉइंट जो निकलकर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है, अब जो 2 करोड़ की 44AD के लिए मुझे टर्नओवर लेनी, देखिए 44AB में जब मैं ऑडिट करूंगा तो मेरा 1 करोड़ की लिमिट या 10 करोड़ की लिमिट के लिए मेरे को बड़ा क्लियर है। तो मुझे टर्नओवर इंक्लूडिंग जीएसटी लेनी है कि विदाउट जीएसटी लेनी है, मुझे इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट के हिसाब से लेनी है। वो कहते हैं P&L के अंदर अगर आपने ग्रॉस दिखाया है तो ग्रॉस लेंगे, P&L के अंदर अगर आपने नेट दिखाया है तो नेट लेंगे। सिंपल। जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से मेरी टर्नओवर आती है, सपोज करिए 1 करोड़ की मेरी टर्नओवर है, 18 लाख रुपए जीएसटी है। अगर मैंने P&L में 1 करोड़ 18 लाख दिखाया तो 1 करोड़ 18 लाख लेंगे। अगर मैंने अपने P&L में 1 करोड़ दिखाया तो 1 करोड़। सिंपल। ये हमारा इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट।
44 एडी में क्या बोलता है, एक है एफएक्यू नंबर 3, डिपार्टमेंट का है एफएक्यू नंबर 3। वो बोलता है कि सर 44 एडी के लिए आपकी जो टर्नओवर लेंगे वो आईसीडीएस के हिसाब से 145 कैपिटल ए के हिसाब से हम इंक्लूडिंग जीएसटी लेंगे। बात समझ में आ गई सर? एफएक्यू नंबर 3 सर्कुलर नंबर 10 23 मार्च 2017। यानी कि जब आप 44 एडी के लिए 2 करोड़ रुपए टर्नओवर देखेंगे तो ये सर्कुलर डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। तब आप जब 2 करोड़ में 44 एडी के कमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अब आपको उसकी टर्नओवर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखनी है। अगर जीएसटी मिला के 2 करोड़ रुपए से उसकी टर्नओवर इंक्रीज हो गई, फिर वो 44 एडी के कमरे में नहीं आ सकता, फिर वो 44 एडी अवेल नहीं कर सकता। अगर जीएसटी मिला के किसी प्रोफेशनल की टर्नओवर 50 लाख रुपए इंक्रीज हो गई, 50 लाख रुपए से एक्सीड हो गई, अब वो 44 एडीए में नहीं आ सकता। ठीक है सर, ये डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग सर्कुलर है। तो 44 एडी और 44 एडीए को चेक करने के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आप जब अपनी वर्किंग बनाएंगे तो ये एफएक्यू निकाल लीजिए, एफएक्यू नंबर 3 सर्कुलर नंबर 10 23 मार्च 2017। अभी 3 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि लास्ट में आपका WI भी कुछ ना बचे। कुलदीप सिंह जी पूछ रहे हैं सर 269 एसएससी में खाली डिफॉल्ट रिपोर्ट करना है कि सारी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना है? सर आपको सारी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करनी है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, खाली डिफॉल्ट की बात नहीं है। विपुल गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गूगल कैन बी ऑप्ट फॉर 44 एडी। विपुल जी, आप सर्विसेज अगर प्रोफेशनल सर्विस है तो आपको 44 एडी में जाना पड़ेगा, अगर आपके बिजनेस है तो आप 44 एडी में आएंगे। तो पहले आप डिसाइड करिए कि वेदर यू फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल और नॉट। ठीक है सर। फिर सिद्धार्थ पत्रा जी पूछ रहे हैं इफ वी विड्रॉ लेस एज कंपेयर टू रिटर्न फाइल्ड अंडर प्रिजम्पटिव रेट देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिपेयर आवर कैपिटल अकाउंट। नहीं, कैपिटल अकाउंट बना लो, 8% डिक्लेयर करो, किसने मना किया आपको? ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट जो भी आपको है आप बनाइए अपने हिसाब से, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट अगर आप असेसिंग ऑफिसर को देंगे तो यू विल बी गिविंग योर एविडेंस अगेंस्ट यू कि साहब मैंने अपना इनफ्लो ज्यादा लिया है, कैश फ्लो ज्यादा हो गया। तो कैपिटल अकाउंट अपनी वर्किंग के लिए बना के रखें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप असेसिंग ऑफिसर के देंगे तो दैट विल गो अगेंस्ट यू। नहीं सर, यहाँ सर एक सेकंड रोक रहा हूँ मैं आपको। सर यदि हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसमें यदि हम एज ए प्रॉफिट एडिशन करते हैं तो ये हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सर हम इनकम ज्यादा शो करें? मैंने आपको कहा कि अगर देखो मेरी बात अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा व्यू पॉइंट हमेशा ये है कि अगर मैंने कैश फ्लो ज्यादा क्लेम किया है, फंड फ्लो ज्यादा क्लेम किया है, ठीक है सर, तो लॉ 44 एडी बड़ा क्लियरली कहता है 8% और 6% और हायर अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द एसएससी। यस यस, वेरी गुड। ठीक है, मेरी इंटरप्रिटेशन बड़ी क्लियर है कि अगर मैं खुद कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ और अपने कैपिटल अकाउंट में मैंने 8% से ज्यादा कैश फ्लो ले लिया, 6% से ज्यादा कैश फ्लो ले लिया, 50% से ज्यादा कैश फ्लो ले लिया, तो सर लॉ बड़ा क्लियर है कि मुझे उसी पे टैक्स देना है। यस सर, हायर अमाउंट पे टैक्स देना है। 8%, 6% या 50% की सील्ड के पीछे आप नहीं जा सकते। 8%, 50% या 6% आप तब जाओगे जब आप कहोगे साहब मेरे पास तो कोई हिसाब ही नहीं है। जी सर, जी सर, ठीक बात। मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। अगर आपने हिसाब बना लिया और सिंगल एंट्री बेसिस पे आपने कैश फ्लो ज्यादा क्लेम कर लिया तो फिर आपको 8%, 6%, 50% ना देके आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स देना है। If 44 AD turnover includes GST, then SSC income also get calculated on GST. राघवेंद्र जी, आपकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है और ये डिपार्टमेंट का व्यू है। सर ये मेरा व्यू नहीं है, डिपार्टमेंट ने आईसीडीएस के बाद अपने एफएक्यू निकाले हैं और जो असेसिंग ऑफिसर है उसके लिए ये बाइंडिंग है, एसएससी के लिए बाइंडिंग नहीं है। आप इसको अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो इट विल बी योर कॉल। ठीक है सर, लेकिन थोड़े से अमाउंट के पीछे
आप किसी झगड़े को इनवाइट ना करें। ये छोटा एसएससी होता है, इसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, लिटिगेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते छोटे एसएससी, तो लिटिगेशन सोच के ऐसे केसेस को प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, 15 मिनट बचे हैं सर आपके पास। आपको जितनी भी क्वेरी जिसको पूछनी है अपनी क्वेरी डाल दीजिए। सही एग्जैक्ट 6 बजे आई विल एग्जिट फ्रॉम एयर। ठीक है सर। तो सर आप 2-3 मिनट पहले एंड कर दीजिएगा, हमें वोट ऑफ थैंक्स भी प्रोड्यूस करना है सर। कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट और लूंगा। ठीक है। हाँ बस प्लीज सर। ठीक है। ठीक है सर। नहीं, 2-4 मिनट की कोई कसम नहीं है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं। वो एक्चुअली में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डिनर टाइम होता है 6 बजे के बाद, जी सर, जी और सर। आजकल सूरज छिप जाता है 6:40 पर। ठीक है, तो मुझे अपना डिनर लेना होता है नहीं नहीं, प्लीज सर, प्लीज सर। बिफोर सनसेट, तो इसलिए मेरी थोड़ी कंपल्शन होती है। और अगर किसी दिन डिनर छूट जाए तो वाइफ नाराज हो जाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर, उसमें तो बिल्कुल हम कुछ नहीं कहेंगे सर। चलिए अब बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स की केस में। ये लोगों का बड़ा क्वेश्चन होता है, सर ये इंट्राडे कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, इनका ऑडिट कैसे होगा, या इंट्राडे की इनकम को क्या हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं, इंट्राडे के लॉसेस को क्या हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जा सकते हैं, या डेरिवेटिव के प्रॉफिट को और लॉस को क्या हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जा सकते हैं। ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्यों रिलेटिव है? 43(5) की डेफिनेशन को अमेंड कर दिया कि डेरिवेटिव इज नो मोर ए स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। डेरिवेटिव जो है वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं है। साथ में 36(1) में क्लॉज नंबर 15 है, वो कहता है जहां मुझे एसटीटी और सीटीटी का भी मुझे डिडक्शन मिलता है। अगर ये जो है डेरिवेटिव में अगर मेरी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब किसी साल में यदि मेरे पास अगर लॉस आ गया और मैंने इसको अगर बिजनेस इनकम में दिखाया, देन आई विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड दैट लॉस। अगर मैं इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाता हूं, तो मैं अगर लॉस होगा तो वो मुझे फॉरगो करना पड़ेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई क्वेश्चन में क्या रेज करना चाह रहा हूं? अब क्वेश्चन यहां पर मेरे लिए क्यों रेलेवेंट हुआ, ये जो गवर्नमेंट सर्विस में लोग हैं, they cannot engage themselves into any business activity. अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, we cannot engage ourselves into any, the practicing chartered accountant है, then we cannot engage ourselves in any business activity. बहुत से लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है, whenever a particular SSC is dealing in derivative, तो उसकी इनकम को आपको बिजनेस इनकम में ही दिखाना पड़ेगा। You cannot take it to income from other sources. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैंने कोई डेरिवेटिव का काम कर लिया, तो इट मीन्स कि मुझे उसको बिजनेस इनकम में दिखाना पड़ेगा। एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर मैंने कोई डेरिवेटिव की ट्रांजेक्शन कर ली, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस इनकम में दिखाना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसको बिजनेस इनकम में दिखाऊंगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इट विल बी डीम्ड कि आई एम एंगेज इन एनी अदर बिजनेस, वो मेरे एक अगेंस्ट एविडेंस खड़ा होगा। इन द सेम मैनर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके अगेंस्ट एक एविडेंस खड़ा हो गया दैट यू आर एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी। गॉट इट? अब बिजनेस के लिए रूल बड़ा सिंपल है, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगी कि जो आप इंट्राडे कर रहे हैं तो लॉसेस के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, प्रॉफिट के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करके 1 करोड़ या 10 करोड़ एक्सीड हो जाएगा तो आपका ऑडिट होगा। इसी तरीके से डेरिवेटिव्स के केस में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के केसेस में जो आपके डिफरेंसेस हैं, पॉजिटिव डिफरेंसेस एक जगह ऐड कर लीजिए, नेगेटिव डिफरेंसेस एक जगह ऐड कर लीजिए। सारे मिला के अगर 10 करोड़ से एक्सीड हो गए या 1 करोड़ से एक्सीड हो गए, जो भी आपके केस में एसएससी के केस में लिमिट बन रही होगी, तो उस सिचुएशन में आपको डिसाइड करना है कि आपको 44 AB में ऑडिट कराना है कि नहीं कराना। अगर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाता हूं तो मुझे ऑडिट नहीं करना, ये बड़ा क्लियर है। अगर मैं बिजनेस इनकम में दिखाता हूं, सर मुझे एक फोन लेना पड़ेगा प्लीज, अर्जेंट है। प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज।
जी सर। तो एक क्वेश्चन मैं पूछूं जी? सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। तो हम बात ये कर रहे थे, अब ये जो 43(5) की वजह से या सेक्शन 36(15) की वजह से हम इसको बिजनेस इनकम में दिखाते हैं कि क्या इसको बिजनेस इनकम में दिखाना मैंडेटरी है? ठीक है सर। तो मेरी जो इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी साफ और क्लियर है। मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बिजनेस आपका तब होगा when you are engaged in a sustained and organized activity। जब तक वो आपकी स्कैटर्ड एक्टिविटी है, जब तक आपकी वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तब तक वो बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। और जब तक वो बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, तब तक आपको उसको बिजनेस इनकम में दिखाने की जरूरत नहीं है। आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को बिजनेस करना परमिट नहीं करती, बट दे परमिट देम टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज अप टू सर्टेन लिमिट्स। ठीक है सर। और डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है, इट इज ए सिक्योरिटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करना अलाउड है। ठीक है सर। वो बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकता, उसके लिए इट विल बिकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो इट विल डिपेंड अपॉन माई इंटरप्रिटेशन। अगर मेरी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, F&O में काम करना, डेरिवेटिव में काम करना, इंट्राडे में काम करना, मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, शेयर्स का मेरा बिजनेस है, ठीक है, तब तो ये मेरा जाएगा बिजनेस इनकम। और बिजनेस इनकम में टर्नओवर कैसे कंप्यूट होगी वो मैंने आपको बता दिया। और आप 44AD का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आप एलिजिबल एसएससी हो तो आप 8% या 6% दिखा सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो बात। लेकिन अगर वो मेरी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नहीं है, इन दैट केस मैं उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकता हूँ। मेरा नुकसान है, मैं उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा रहा हूं, मैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा। अगर मुझे कोई लॉस आता है तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। ठीक है सर। तो अगर मैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब राजेश अग्रवाल ने, ये राजेश अग्रवाल जी ने तो सीपी छोड़ दिया, अब तो ये एडवोकेट लिखने लग गया अपने नाम के आगे। एडवोकेट पहले लिखते हैं, सीए बीच में लिखते हैं। ठीक कह रहा हूं ना सर? सर अब जब तक ये इन्होंने एडवोकेट का बार काउंसिल का ले लिया है ना, तब भी बिजनेस एक्टिविटी में नहीं जा सकते, क्योंकि कोई वकील जो है कोई दूसरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है सर। तो चाहे वो सारे प्रोफेशनल ऑलमोस्ट एट पार आएंगे, ठीक है, आपने बार काउंसिल का मेंबरशिप ले ली तब भी नहीं कर सकते, आपने सीए इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ले ली तब भी आप डेरिवेटिव की बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है सर। अब ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने कोई डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अगर इसको बिजनेस इनकम मान लेंगे तो फिर तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई सर? इसको अगर बिजनेस इनकम मान लेंगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। मैटर वेंट टू इंस्टीट्यूट से हमने एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से पूछा कि साहब आप इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है जाने अनजाने में इन्वेस्टिंग करते समय, शेयर्स खरीदते समय इंट्राडे हो जाता है। आपने सुबह शेयर खरीदे, आपने खरीदे थे कि डिलीवरी लूंगा, अब उसी दिन उसका भाव बढ़ गया तो आपने बेच दिया, इंट्राडे हो गया। आपने डेरिवेटिव्स खरीद लिए, इंडेक्स खरीद लिया, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस खरीद लिए। ठीक है सर। तो इंस्टीट्यूट से पूछा कि साहब आप बता दीजिए कि आपका क्या ओपिनियन है। तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने 13 जून 2019 को अपनी 148th मीटिंग में कहा दैट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन is not in the nature of investment but is in the nature of business prohibited under clause 11 part 1 first schedule ICAI Act। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा कि सब हम आप इसको बिजनेस मानेंगे। अब बिजनेस मानेंगे तो कोई भी जो जिसके पास भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, जिसके पास भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा,
तो उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाए। तो फिर उसके बाद बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिए एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को, एंड दे हैव रिकंसिडर्ड दिस सिचुएशन। और रिकंसिडर करने के बाद अब उन्होंने एक एफएक्यू निकाला है सर, ये नोट कर लीजिए राजेश जी, आप क्योंकि पब्लिक फिगर हैं, लोग आपसे बात करते हैं, मिलते हैं। 4 अगस्त 2021 को 4 अगस्त 2021 को हमारे इंस्टीट्यूट ने, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने एफएक्यू दिया है, और उस एफएक्यू में कहा है कि जो प्रोफेशनल के मेंबर्स हैं वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में डेरिवेटिव की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं कर सकते। आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम में नहीं कर सकते, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म के नाम में नहीं कर सकते, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। इंडिविजुअल नेम में कर सकते हो आप। इंडिविजुअल नेम में, पर्सनल नेम में अपने लिए कर सकते हो। जी सर, जी सर। एचयूएफ में कर सकते हैं क्या? नो। नहीं, एचयूएफ में किसने मना किया? अब तो ऐसा कोई खुद ही अलाउ कर दिया, तो एचयूएफ में क्यों मना करेंगे? अच्छा, हाँ, क्यों अब नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक है जी। पहले एचयूएफ में मना था, अब तो जब आपको इसमें अलाउ कर दिया, अब आपको मेंबर को, जिसके मेंबर के पास HUF में जाओ गया, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है जिस मेंबर के पास, ठीक है ना सर, तो एचयूएफ भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करेगी। ठीक है सर, उसको बिजनेस नहीं मानेंगे। आप ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी करोगे तो वो बिजनेस हो जाएगा, तो फिर आपको कर्ता बदलना पड़ेगा। आप करता नहीं रह सकते उस एचयूएफ के। ठीक है सर, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नहीं करते। अगर आपने स्कैटर्ड डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट किया है, पर्सनल कैपेसिटी में किया है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। सर एक क्लैरिफिकेशन, और अभी अभी आपने मैं अपनी बात पूरी कर दूं, फिर क्लैरिफिकेशन पूरी करके और फिर सबको क्वेश्चन जवाब देके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि F&O में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इंडेक्स में कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं, कमोडिटी में डेरिवेटिव नहीं कर सकता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कमोडिटी में डेरिवेटिव नहीं कर सकता, और ये काम करने के लिए अब आपको काउंसिल से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। और जिस आदमी के पास सीपी नहीं है, जिस मेंबर के पास सीपी नहीं है, वो फ्री है, वो चाहे कुछ भी करे, वो कुछ भी कर ले, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट की कोई गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है सर। तो इस तरीके से डेरिवेटिव के लिए मैंने सारे बता दिए। और अब सर आनंद जी आपका भी क्वेश्चन ले लूंगा, और क्वेश्चन आंसर में भी 4-5 क्वेश्चन पड़े हैं, वो भी ले। सर अभी अभी आपने कहा कि अगर वो बिजनेस करते हैं तो कर्ता चेंज करना पड़ेगा, तो क्या एचयूएफ में कर्ता चेंज भी कर सकते हैं? एचयूएफ में करता क्या बर्थ होता है? हाँ जी। कोई कंडीशन होती है एचयूएफ में करता होने की? अब तो फीमेल को भी अलाउ कर दिया करता होना। तब तो व्हाट वी अंडरस्टैंड के करता तो सर मैंने आपको क्या कहा कि इस समय फीमेल को अलाउ कर दिया करता होना। तो आपको मेरी बात से आंसर नहीं मिलेगा इस बात से। अब तो औरत भी करता हो सकती है। मिल गया तो पहले कंडीशन थी कि मेल को करता होना जरूरी था। अब तो डॉटर भी करता हो सकती है। डॉटर भी हो सकती है, बहू की वाइफ भी हो सकती है। लेकिन सर वो मेरी निगाह में, मेरे जहाँ तक मैं सोचा है, वो तभी है सर। देखो सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये F&O के बिजनेस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए, दैट्स ऑल। बात खत्म। सीधे से बात ये, कोई ये आपके लिए बचाव के लिए रास्ता दे दिया कि कोई स्कैटर्ड ट्रांजेक्शन दे दिए तो आपके ऊपर मिसकंडक्ट ना आए। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको ये सेफ गार्ड दे दिया है कि अगर आपसे कोई स्कैटर्ड F&O का काम हो गया है तो आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस नहीं बनेगा। अभी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने आपके लिए रास्ता निकाल दिया है। बट डोंट टेक इट कि आप सीपी रख के और F&O के काम में लगे। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है सर मेरा कि ये वेदर रॉयल्टी इनकम इज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रॉयल्टी कब मिलती है आपको? बुक्स पब्लिश करने पे, बुक्स लिखने पे। क्या है बुक्स लिखना आपका क्या है? अगर हम सिर्फ बुक्स ही लिख रहे हैं सर, आपका बुक्स लिखना क्या चीज है? इट्स योर वोकेशन। देखिए सर, प्रोफेशन की डेफिनेशन में भी आएगा, वोकेशन की इंटेलेक्चुअल एक्ट है कि नहीं है आपका ये? हाँ जी, ये आपका इंटेलेक्चुअल एक्ट है ना? हाँ भाई अगर आप ऑथर है हाँ, तो ये आपके वोकेशन की डेफिनेशन में भी आएगा, प्रोफेशन की डेफिनेशन में भी आएगा। आप पब्लिशर है तो आपके बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है सर। बुक राइटर को मैंने आपको कहा अगर आप किताब लिख रहे हैं तो यू आर इंटेलेक्चुअल, दिस इज योर प्रोफेशन। अगर
आपने कभी शौकिया एक कविता लिख के छोड़ दी और बाद में कभी दोबारा नहीं लिखी, और आप इस काम को सस्टेन्ड एक्टिविटी की तरह नहीं करना चाहते, तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाओ, बात एक अलग है। आप कविताएं लिखते हैं, अपने घर में लिखते हैं, कागज के पत्ते पड़े रहते हैं, नहीं बिक रही, देन इट विल बी बिजनेस। ना बिके, आपने दुकान खोली, आपने दुकान में माल रखा, आपका माल नहीं बिका, इट्स अ बिजनेस। टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है, वेदर इट्स ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेन्ड एक्टिविटी और नॉट, दैट विल डिटरमिन कि आपका बिजनेस है कि नहीं। ठीक है सर। तो आपके केस में, ऑथर के केस में, ये वोकेशन और प्रोफेशन दोनों के डेफिनेशन में फॉल करेगा। ठीक है सर। तो बिजनेस। परवीन यादव जी, आई one Rajasthan government employee received a salary of January to March 2020, April 20 due to budget issue of Rajasthan government. Will it be declared arrear of salary? Whether it be formed to, देखिए सर, एरियर ऑफ सैलरी अगर एरियर कह के दिए जाते हैं तब वो एरियर ऑफ सैलरी होता है, और जो सैलरी की टैक्सेबिलिटी आती है वो एक्रूअल बेसिस पर नहीं होती। सैलरी की टैक्सेबिलिटी होती है सैलरी अलाउड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है। तो जितनी सैलरी आपको अलाउ की गई एक साल के अंदर, वो चाहे वो 12 महीने की हो, चाहे वो 10 महीने की हो, चाहे वो 8 महीने की हो, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है सर। और एरियर ऑफ सैलरी में तब काउंट होगा वंस इट इज गिवन एज एरियर ऑफ सैलरी। Ashok Sharma ji, derivative income, as you said, is business income. Some CAs have expressed the view you can claim 6% of that amount. I have doubt as that is net income. What is your valid opinion? सर अशोक शर्मा जी, अगर हमारी टर्नओवर 44 ईडी के हिसाब से हम फॉल करते हैं, और हमारे नेगेटिव डिफरेंसेस और पॉजिटिव डिफरेंसेस, लॉसेस वाले और प्रॉफिट वाले, उन दोनों का एग्रीगेट मिला के अगर 2 करोड़ रुपए से कम बैठता है, और हम 6% 8% में जाना चाहते हैं, तो हम जा सकते हैं सर। देयर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हालांकि इसकी रिटर्न भरने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है कि अगर फॉर्म 3 भरोगे तो, क्योंकि इसमें टर्नओवर एक तरह से रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि टर्नओवर आती नहीं है बुक्स में। ये खाली आपका वर्किंग पेपर का हिस्सा है जिसमें आप टर्नओवर क्रिएट करोगे इसकी, व्हाट अमाउंट टू टर्नओवर। सुनील बावेजा जी, thanks sir for excellent deliberation. My question is, what is the duty of an auditor in case of SSC having turnover between 2 crore to 10 crore for financial year 2020-21, still insisting of getting his accounts audited but not giving any declaration regarding cash receipt or cash payments being more than 5% of gross receipt and payments respectively, whether a CA should do audit for such client? If yes, then what precaution he must take? पहली बात तो ये देखिए साहब, आपसे कोई ऑडिट कराना चाहता है और आप ये कह रहे हैं कि जिस समय वो मुझसे ऑडिट कराना चाह रहा है उस समय नहीं बता रहा, लेकिन ऑडिट के टाइम पे तो बताना ही पड़ेगा उसकी 5% एक्सीड कर रही है कि नहीं कर रही। ऑडिट के टाइम पे तो आपको भी वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना है, आपको अपनी रिपोर्ट में क्लॉज नंबर 8 में लिखना है कि आप कौन सी क्लॉज में इनका ऑडिट कर रहे हो। तो ये फिगर अनडिटरमिन तो नहीं रह सकती कि 5% की लिमिट में फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, इसके लिए मेरी जो ओपिनियन है कि आप में लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए बन गई और 10 करोड़ के बाद आपको ऑडिट करा, आपके एसएससी की 8 करोड़ की टर्नओवर है और वो आपसे कहते हैं कि नहीं जी आप मेरा ऑडिट कर दीजिए, as per law you are not required, the SSC is not required to get the books of accounts audited, is not required, you are not required to upload your tax audit report. ठीक है सर। अब एसएससी कहते हैं नहीं साहब आप कर दीजिए, तब आपको उससे एक एंगेजमेंट लेटर लेना पड़ेगा स्पेसिफाइंग दैट दो आई एम नॉट एलिजिबल for getting my books of accounts audited under section 44AB, but this is my specific requirement and I require a report from you in form number 3CB and 3CD. ठीक है सर। अब वो एसएससी आपसे मांग रहा है और वो अपलोड नहीं होगी, आपके एंगेजमेंट लेटर में आपको क्लियर करना पड़ेगा। कल को आपका एसएससी इंस्टीट्यूट में जाके कहे कि देखिए साहब आप हमारे सीए साहब ने तो हमें बेवकूफ बना के हमारा ऑडिट कर दिया, हमारा तो ऑडिट होना ही नहीं था, तो आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मामला बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों राजेश भाई? ठीक है सर। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। कैन डेरिवेटिव्स और F&O इनकम और इंट्राडे इनकम कैन बी शॉर्ट अंडर कैपिटल गेन? नहीं सर, कैपिटल गेन में गिरीश शर्मा जी किसी कीमत पर नहीं जा सकता।
either it will remain as part of business income or income from other sources. Other sources. ठीक है सर. So with this 6:05 हो गए, 5 मिनट मैंने आपके ज्यादा ले लिए हैं. So I once again convey my thanks to राजेश अग्रवाल जी, all the members. और मैं देख रहा हूँ इतनी लंबी स्ट्रेंथ में, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में आपके मेंबर्स सुनने आए हैं. हालांकि मैंने खुद कहा कि जब मैं टैक्स ऑडिट के लेक्चर का आपने इन्विटेशन दिया तो मैंने कहा यार मैं तो थक गया हूँ बोल बोल के, और लोग भी सुन सुन के थक गए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें मैं क्या नया दूं. बट स्टिल इतने लोग सुन रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी लोगों में कुछ कंफ्यूजन है और कुछ क्यूरियोसिटी है. सो थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Thank you, Jain Saab, for very nice and detailed deliberation. Quickly, I request Vasisht Gakar ji for a formal vote of thanks. Over to Gakar Saab. नमस्कार जैन साहब, वशिष्ठ बोल रहा हूँ. बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है. नमस्कार वशिष्ठ जी. नमस्कार. के थ्रू आपसे ईमेल पे तो आपके आते रहते हैं और बड़ा आपका स्टाइल वही है जो मैं पसंद करता हूँ. मैं भी वैसे करता हूँ, बड़े कलरफुल और एक एक वर्ड को चेंज करके कलर. मेहनत बड़ी लगती होगी आपकी. नहीं वो दूसरे राजीव जैन साहब. वो राजीव जैन जी दूसरे हैं. दो राजीव जैन साहब हैं. अच्छा, क्योंकि मुझे ना सिर्फ बोलने का शौक है, उनको लिखने का शौक है. अच्छा, एनीवे मैं लिखता नहीं हूँ. वो बोलते नहीं है. पर सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं हुआ, तो मेरा सर्कल बहुत लिमिटेड है. Though now I am going to be about 60 in next 4-5 months. तो 60 तो यंग एज होती है सर. पता नहीं सर, मतलब कि अगर देखा जाए तो 30-35 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए. एनीवे आप सर वोट ऑफ थैंक्स से पहले तो अपने आप को ना बुजुर्ग मानना बंद कर दो. नहीं, मैं बुजुर्ग की बात नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ टाइम काफी हो गया, पर मैं सोशलाइज नहीं हुआ ज्यादा उसके अंदर. दैट आई विल डाई विद माय बूट्स ऑन. तो वो कोई नहीं है. दैट इज ओनली अ नंबर, बट इट वाज क्वाइट इंटरैक्टिव एंड अ वेरी नॉलेजेबल थिंग. सबसे बड़ी बात है कि आपने जो इस बार सेमिनार ये किया है, ये बिल्कुल नॉर्मल जो तरीके के थे उससे हटके किया है. बिल्कुल ऑल दोज इश्यूज व्हिच वर नॉट, मतलब कि नहीं तो फॉर्म उठाते हैं, पॉइंट वाइज डिस्कशन होती है, उसका कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रह गया, क्योंकि आपने पहले ही ब्रीफ किया. इतने टाइम से सारी चीजें करते आ रहे हैं. जो थोड़े बहुत चेंजेस आए आपने डिस्कस कर लिए, बट उसके अलावा जो उसमें बड़ी सारी आपने डिमेंशंस ऐड करी, दोज वर वेरी यूजफुल, जो कि नॉर्मली सेमिनार्स में कवर होती नहीं है. बिल्कुल वो बुकिश चलता जाता है, बुक पढ़ी वहां से बोलते चले गए. सो देयर वर मेनी एंगल्स व्हिच वर डिस्कस्ड इन दिस, फॉर व्हिच वी आर रियली थैंकफुल टू यू. कि इस तरह के अगर ये होते रहे, और फिर आज का तो टाइम भी हम ज्यादा ले रहे हैं. आई एम इंट्रूडिंग इनटू योर प्राइवेसी एज सच. और भाभी नाराज ना हो, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल कट शॉर्ट करूंगा, क्योंकि आपका अगर भाभी खुश हैं तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और हमारे लिए बड़े काम आते हैं. सर आप जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर sharing your deliberation on this. And with this I would like to keep it very short. Over to you, Rajesh ji. Thank you very much. Thank you Jain Saab. नमस्कार. Anand Dua ji, Manish ji, Amit ji, and Gakar Saab also, and all the attendees. Thank you sir. Thank you.